یہ پہلے بھائی آئے ہوتے خارستان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا وہ اکٹھے ہوئے ہیں بھائی کہاں ہے، کون سی براڈ ہے، کیا ہے، کوئی بتائیں مجھے. حضرت نون صاحب بڑی مہربانی جناب، اچھا وہ بھی شکر ہے باری آگی. ملک صاحب اس دن ہم نے ایک گفتگو کے لیے ٹائم سیٹ میں کیا معافی تھا. چاہتا ہوں، میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس براڈ پر آیا ہوں. مجھے پتہ لگا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ڈھونڈا ہے آپ کو، میں اس براڈ پر آ گیا ہوں. یہاں پر بھی آپ چلے آ جائیں پھر دیکھیں. ادھر ہی چلتے ہیں. عامر بھائی آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کون ذرا سی تھوڑی براڈ سی ہے؟ صدارت کر لیں جوزف بھائی کے پاس. جوزف بھائی سے بہتر عامر نذیر صاحب اپنی براڈ لگائیں تو میں ادھر آ جاتا ہوں. یار ادھر یہی منظم کریں گے. جوزف صاحب کو ادھر انوائٹ کر لیں، یہ بھی آپ ہی کی براڈ ہے. نہیں سر ادھر کا ٹائم سیٹ ہوا ہے. عامر نہیں، بھائی میں نے ادھر آ کسی جاتا براڈ پر آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے یہ ملک ضرور آپ کے صاحب ساتھ ایگری کیا آپ تھا. نے کہا یار تھا بات 2 تو آپ کے ایسا نہ ماڈریٹر کریں. ہوں گے، 2 ہمارے ہوں گے. آپ میری بات سن لیں. آپ ملک نے صاحب خود ایسے آفر نہیں کی تھی کرتے، مجھے کہ دیکھیں. عامر نذیر صاحب کی براڈ ہو جائے، اس ٹائم تو نہیں میں نے ایسے ان نہیں کو اچھا بھی ایک ہوتا. منع منٹ کر ملک دیا صاحب، آپ نے تھا. ملک صاحب یہ بات ڈیسائیڈ ملک ہوگی صاحب تھی، ایک منٹ گواہ دیجیے. ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے. ملک صاحب جھوٹے حضرت پڑ نون جائیں گے صاحب اس ایک طرح. منٹ، حضرت نون صاحب پلیز میں میوٹ لگا رہا ہوں آپ کو، پلیز سن لیں. آپ ادھر آ جائیں، ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں. ایک موڈ میں آپ کا ایڈ کر دیتا ہوں، ایک ان کا ایڈ کر دیتا ہوں. آڈینس آگے پہلے ہی بیٹھیے، اگر بات کرنی ہے تو آ جائیں. ہاں جی، کیا کہتے ہیں ملک بندے صاحب؟ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلا لیں ایک بندے کو. خیر جی ایک بندے کی بات نہیں ہے. ادھر ہم 1.5 گھنٹہ ہو گیا انتظار کرنے. 1.5 گھنٹہ یہ زیادتی ہے. آپ علمی حلقوں میں بات کرنے والے ہو، ایسے نہیں کرو. ملک صاحب ادھر آئیں اور اپنا جو بھی میرے انہوں نے ٹائم پیارے سیٹ کیا بھائی، تھا اس کو. میرا آپ سے 5-7 مرتبہ جوزف صاحب کے ساتھ ایکسپیرینس، بیڈ ایکسپیرینس ہے کہ میں ان کی براڈ پر گیا ہوں، آ کر گالی گلوچ بدتمیزیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، اور مرزا صاحب کی شاتمیت کروا کے میں واپس آیا ہوں، ملک اتار دیا صاحب گیا ہوں، گالی پھینک دیا گلوچ گیا ہوں. کدھر نہیں ہوتی اور ہے، مجھے سن لیں مجھے کدھر نہیں ہوتی وہ ہے گالی گالیاں گلوچ. دیتے رہے آپ کے لوگ، مجھے میوٹ کر دیا گیا، مجھے میری بات نہیں نکلنے دی، اور خود نہیں وہ ایسا نہیں شاتمیت ہوگا. میں. دیکھیں آپ عامر نذیر صاحب کے پاس آ آپ جائیں، میں اپنی ادھر پسند کا بندہ لے لیں، عامر نذیر اپنی صاحب کے پسند پاس کا آ جاؤ. بندہ لے لیں جس کو عامر ماڈریٹر نذیر تو بنانا احمدی نہیں ہے نا، ہے. ایسا نہیں عامر کرتے ہیں. نذیر احمدی نہیں ہے. ملک آپ ادھر صاحب آ جاؤ. مردوں والی بات کریں، آپ یہ کیوں ایک ایسی بات عورتوں کر والی رہے ہو. بات ہے کہ میں اپنے یہ مخالف کو، عامر نذیر صاحب جوزف صاحب کے دوست ایک ہیں منٹ اور جماعت ملک صاحب، احمدیہ ایک کے منٹ مخالف دیجیے گا. ہیں. ملک صاحب پلیز. اچھا ملک صاحب ادھر ہی بات مجھے تو ہوگی اگر ہوگی تو. جی مجھے میں نہیں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، آپ پوچھ رہے تھے کدھر گالی نہیں ہوتی، تو پلیز یار نیچے جتنے بندے بیٹھے ہیں لکھ دیں کہ میرے پیارے دوستو آج تک یہاں پہ کوئی گالی ہوئی ہے؟ نہیں نصر اللہ بھائی نہیں، کبھی یہاں پہ ان سے پوچھیں کہ ایسی کون سی شک ہے جو آپ کی براڈ، جوزف صاحب کی براڈ پر پوری ہوگی، ادھر نہیں ہوتی. یہ بھائی کے ساتھ، میں بھائی کا نام بھی نہیں جانتا ہوں، خدا کی قسم جن کے پاس بیٹھا ہوں. طلعت بھائی 3 بندے ہیں، 3 بندے، ایک ملک آپ کی صاحب آپ براڈ. کیوں ایسی بات کر رہے ہو. ایک میں ٹائم بات کر سیٹ رہا ہوں، کیا آپ ہوا ہے. عامر نذیر صاحب کی براڈ پر آ جائیں. نیوٹرل براڈ کوئی بھی لے لیں جو مجھے قابل قبول ہے آپ کو، میں ادھر تیار ہوں. تو یہ بات اس دن کرنی تھی، تو اس اب دن کر رہے ہیں. میں نے اس 1.5 دن بھی گھنٹہ کہا ٹائم آپ کو، اوپر ہو گیا. جوزف صاحب کی براڈ میں نے یار آپ کو منع کیا خرشتی تھا اس دن بھی. خرشتی بھائی، آپ ایک بندہ ہے، ان کو کہیں آپ ان کے ساتھ رہے یا کہ کم از کم ملک صاحب کمفرٹیبل ہے، کمفرٹ زون میں رہیں گے. صاحب دیکھیں ٹائم ملک صاحب نے سیٹ کیا، وینیو ہر چیز سیٹ ہوئی ہے، ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس. او سیٹ ہے، میں یار کوئی اگر بات کر ایک رہا ہوں. بندہ جس نے ڈیبیٹ دعوت کرنی ہے وہ ضد تو نہیں کرے گا تھوڑی ہے ادھر کہ نصر اللہ بندہ بھائی وہاں آ ایک پہ جائے. منٹ، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، نصر اللہ میز بھائی ایک لگے منٹ ہوئے ہیں، دیجیے گا. کھانا ملک آیا صاحب ہوا ہے. دوڑ گئے ابھی ڈیبیٹ سے. اور ملک میں صاحب، بھاگ رہا ہوں، ملک ملک صاحب یہ صاحب تو کیسا انسان ہے یار. دوڑ گئے. میں دوڑ گیا ہوں جی. پلیز ڈونٹ چلو یار عامر کریں، چھوڑو، نذیر تھوڑے صاحب کی سے براڈ پر آ یہاں جاؤ، پہ سیلف رسپیکٹ یا کی. کسی نیوٹرل ایک منٹ براڈ پر ابھی عبید آ بھائی، جاؤ، میں ابھی تیار بیٹھا ہوں، ریڈی ہوں. عبید بھائی مقصد یہ ہے کہ میں ان کی بلاڈ پہ ایک دفعہ میں بھی خرشتی کی بلاڈ پہ گیا تھا، تو یہ آگے سے اوکے شاتمیت کرتے ہیں تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو وہاں نہیں بیٹھا جا سکتا. یہ میرے ساتھ ذاتی نہیں، پھر بھائی ایسی روڈ پہ جان، تو ملک ملک صاحب صاحب اللہ کو جائیں بھی بھائی، نہ جہاں پہ ہمارے آپ قابل ایک کی بار گئے ہو، توہین ہو. 10 مرتبہ میرا بیڈ ایکسپیرینس ہے ان
مسیح بھائیوں کے ساتھ 10 مرتبہ آخر میں آ کے یہ یہاں مرزا پہ صاحب بیٹھے ہیں ہم ووٹنگ کرتے ہیں، بیٹھے ہیں شادمیت کرتے ہیں اور آپ کی دوسرے بات کو سننے گرا گے دیتے ہیں یا دوسرے کا مائک میوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل یہ نیوٹرل یہاں پہ میں موڈ ہوں ملک صاحب تسلی سے جس کو مرضی نہیں بلائیں۔ یہاں پر نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، میں عامر نذیر صاحب کی براڈ پر آ جائیں، آ جاؤ، ہمت ہے تو ہاں آؤ، میں تمہیں بتاؤں نیوٹرل کتنے بندہ بھی تو ہیں، ہوگا نا۔ ساؤنڈ ہے، میں ناک سے چنے چباؤں گا تمہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم، میں تمہارا وہ حال کروں گا جو 10 مرتبہ پہلے کیا ہے علمی اور عقلی طور پر۔ ملک صاحب جی اچھا نصر اللہ دوست ایک اور ان کو آفر کر لیتے ہیں ابھی ہوسٹ ٹو ہوسٹ سے ان کو کہیں ادھر ہی ہوسٹ ٹو ہوسٹ لگا لیتے ہیں، ملک صاحب تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، کیا کہتے انہیں کہیں ہوسٹ یہ ٹو بھی ہوسٹ ٹھیک لگا ہے، دیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جائیں، ہوسٹ ٹو ہوسٹ آپ اپنی آڈینس نیچے اتاریں، میں اپنی اتارتا ہوں، ملک صاحب اور میں آ جاتے ہیں اور آپ ادھر سے آ جائیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بالکل ٹھیک ہوسٹ ہے، ٹو بہترین ہوسٹ آ میں جائیں۔ ہوسٹ ٹو بہترین ہوسٹ میں آفر۔ تو اور دونوں کے اختیارات برابر ہیں، آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں بالکل صحیح بات۔ اگر تو آپ کا براڈ مطلب وہ ہوئی ہے کہ جی اس براڈ پہ ہوگی تو پھر میرا خیال ہے ادھر جانا چاہیے اگر آپ کی پہلے ہوئی ہے، اگر براڈ نہیں ہوئی تو پھر ان سے میرے خیال سے وہ مشورہ کر لیں کہ جہاں پہ اچھی بات ہو سکتی ہے، اگر ادھر جانا ہے تو پھر بے شک وہ آپ کی سائڈ سے کوئی موڈ او بنا دیں۔ پیارے محترم بھائی، میرے کوئی ان سے اس بات پر اتفاق نہیں ہوا تھا، نیوٹرل براڈ کا ہوا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عامر نذیر تو احمدی نہیں ہے، وہ تو جوزف صاحب کے بالکل یار ہے، دوست ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، وہ ان کو پک کریں یار، وہ نون بھائی کو پک کریں ذرا۔ یا ہوسٹ ٹو ہوسٹ آپ ادھر شایان بھائی براڈ لگا کے آ وٹنس جائیں، ہوسٹ ٹو بالکل ہوسٹ۔ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا، ملک صاحب نے خود ہمیں بری تھی کہ 2 موڈ آپ بنا دیجئے گا تو آپ کی براڈ پہ آ جائیں چلیں گے، وہ اس دن کی نون بات بھائی کو آنے دیں، وہ نون بھائی کو پک کریں یار، عبید بھائی وہ پک کیجئے گا ذرا۔ ہوسٹ کریں پھر ان کا مجھے تو آئی ڈی کا نہیں پتا۔ نصر اللہ دوست موڈ ہیں، آپ چیک کر لیں، اگر نیچے ہیں تو اٹھا لیں۔ کون سی آئی ڈی تھی ان کی نون صاحب کی؟ خرستی کے نام سے تھی نا ان کی؟ خرستیان کے نام سے تھی، نہیں، خرستی پاکستانی تھی۔ ہاں خرستی پاکستان، چیک خرستی کر لیں اگر ہیں تو پاکستان اٹھا لیں، لیکن میری نظر براڈ کا نہیں ایک آیا رول ابھی ہے، تک۔ اس وجہ سے نصر اللہ دوست میں ان کو بتا دوں یہ کس وجہ سے ان کو اتارا ہے کہ پلیز ٹونٹ نہ کیجیے، ڈس ریسپیکٹ نہ کیجیے کسی کو یار وہ آپس اچھے میں۔ انداز میں بات کر رہے تھے نا، بات تو کرنے دیں نا، پک کریں، گالی تو نہیں نہ دی انہوں نے۔ نہیں ملک صاحب کو دیکھیں نا، وہ ٹونٹ کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے وہ بات ادھر پک ہی کریں، جا رہی تھی۔ کوئی میں سن رہا تھا یار عبید بھائی، نہیں انہوں نے کچھ ایسا کہا جس پہ اور آپ نے ٹونٹ جواب کر کرنے دیا۔ دو، یہ ٹونٹے ہمیں آپ وہ پک کر لیں گالیاں ان کو، انہوں نے دیتے کچھ ہیں ایسا تو آپ کہا نہیں ہے۔ صرف ٹونٹ کو کہہ رہے ہیں، کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں ابھی بھی ملک کہہ صاحب رہا ہوں، آپ اپنے لیے برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے میں برداشت نہیں کر بتائے گا سکتے نا عامر ملک صاحب۔ نذیر صاحب کے پاس آ جائیں، نیوٹرل براڈ پر ابھی آ جائیں، میں ویلا بیٹھا ہوں، میں آ جاتا ہوں، لیکن آپ کی جوزف صاحب کی جو براڈ ہے بیڈ ایکسپیرینس ہے، میرا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہر مرتبہ یہ ہوا ہے جب آپ کے پاس جواب نہیں رہتا آپ مرزا صاحب کی شاتمیت کرتے ہو اور ایسے لفظ کہتے ہو اور ہمارے مائک میوٹ کر دیتے ہو، پھر آخر میں ہمیں اتار دیتے ہو، ہماری سنتے ہی نہیں ہو، مائک میوٹ کر دیتے ہو، اپنی باتیں بولتے رہتے ہو، شاتمیت گالیاں دیتے رہتے ہو، تو وہ بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ آپ کا صحیح اچھا یہ ہے، آپ زین صحیح صاحب کہہ رہے کون ہے، ہیں، یہ وزن کچھ ہے۔ کہہ رہے تھے، یہ زین صاحب آپ ان کی سائڈ سے ہیں؟ بھائی میں الحمدللہ میں مسلم ہوں، میں ان کی سائڈ سے بھی نہیں، میں ادھر سے بھی نہیں، میں اس دن یہ چیز میں نے پراپر بیٹھ کے ان کی اس دن ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، یہ جو نون صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈیبیٹ کے اینڈ پہ یہ چیز پراپر ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ اچھا پہلے ملک صاحب نہیں مان رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ایٹ دی اینڈ ملک صاحب نے بیان خود اپنے منہ سے دیے کہ چلے ہم جوزف بھٹی کی لائف پہ جانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ 2 موڈ ہمارے بنا دیں گے تو ہم آپ جو ہے نا کریں۔ پھر جرمنی ٹائم ڈیسائیڈ ہوا، پاکستانی 10 بجے کا بنتا تھا، ٹھیک ہے، تو ملک صاحب نے خود وہ چیز نہیں ڈیسائیڈ ملک کیا۔ صاحب اگر تو یہ بات ہے تو پھر آپ کو جانا چاہیے موڈ، وہ اگر انہوں نے کہا ہے اور تو پھر میرے میرا بھائی خیال ہے کوئی یہ بات نہیں ہے، ہمیں یاریاں مار رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوئی وہ تھی سامنے کہ بیٹھے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں۔ دیکھیں گے اس ٹائم جب ہوگا دیکھیں گے، لیکن اگر نیوٹرل امپائر پر جس کو شکایت ہو اس کے دل میں کیا شایان ہوتا ہے آپ بھائی ایک بتا بات ہے،
जी जी शयान भाई मलिक यहाँ साहब पे इतने आप सर लोग बैठे हुए हैं, 57 इस वक्त भी बैठे हैं, पहले इससे भी ज्यादा थे। एक बंदा है वो यहाँ आपके आज अपनी मर्जी का यहाँ पे मॉड बनवा ले, ठीक है, तो नहीं यहाँ नहीं पे बात बात हो तो सकती मैं है। तो कह रहा हूँ ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो अगर मलिक साहब ने कोई हामी भरी है तो फिर मेरा ख्याल है ओ शायद मेरे वो मलिक प्यारे साहब भाई, डिनाई कर रहे हैं, मुझे मलिक मुझे साहब डिनाई कर रहे हैं, मुझे तो एक उसकी मिनट वजह भाई, है ना भाई। नसरुल्लाह भाई, मुझे एक बात बता दो कि बरात पर यहाँ तो उन्होंने दावत की हो, खाना तैयार हो भाई, उधर खाना फिर इधर लाके और उठा के लाना पड़ेगा। और ये आखिर क्या वजह है, वो न्यूट्रल बरात पर क्यों नहीं आना चाहते? इसकी वजह कोई बता दे, यस, बताओो। नहीं मलिक साहब शयान बिल्कुल ठीक है, वजन है मैं तो उनकी आपके बात मौकफ की तईद कर रहा हूँ, लेकिन असल बात ये है ਮਲਿਕ कि ਸਾਹਿਬ जब ਮੈਂ वो ਪੁੱਛਣਾ आपकी ਸੀ बात ਜੀ तय हुई ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ यार ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ करो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ 2 ਮੋਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ यार ईमानदारी की बात बताऊं, ਹਾਂਜੀ हल्फन मुझे नहीं याद, वो मेरी रिकॉर्डिंग सुना दे, मैं आ जाऊंगा, यह भी वादा है। मेरी अगर रिकॉर्डिंग हाँ सुना देंगे तो मैं आ जाऊंगा। चले चले मैं बिल्कुल मंगवा ठीक है, लेता जायज जायज हूँ, डिमांड है, रिकॉर्डिंग मंगवा लेता हूँ। ਹਾਂਜੀ और वो ਜ਼ੈਨ सारी ठीक है। स्क्रीन शूट देंगे अपने मॉडरेट, अपने अलावा कोई भी नहीं होगा, 2 मेरी मर्जी के मॉडरेटर कमेंट भी बनाएंगे। आ मलिक साहब आप नीचे खुद कमेंट पढ़ लें कि आपकी रिकॉर्डिंग उधर प्ले की जा रही है। आप खुद नीचे, मैंने नहीं किया किसी को भी मैसेज, सेकंड में ही नीचे आ ओ रहा है वो भाई, चैट। बैठा तो वो रिकॉर्डिंग उनको इधर तो की जा लेके रही आए है तो ना, इधर रिकॉर्डिंग ले आओ, इधर वो रिकॉर्डिंग इनको सुना दो, नून साहब को मैं तैयार भेजेंगे। हूँ। शयान भाई मैं रिकॉर्डिंग लेके आता हूँ, ओके। ठीक है जैन भाई आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ले वह लो पहले मलिक नून साहब साहब के को तो साथ भेजे ना इधर, जिन्होंने जो बात कर रहे थे वो कहाँ चले गए? हम मलिक साहब के साथ चलो चले मैं मैसेज करता हूँ, ओके। ऐसी बात है तो कोई मुश्किल नहीं है मलिक साहब के साथ वहाँ भी चले जाएंगे हम लोग ठीक है। 2 मॉड बनेंगे, एक अली अकबर बनेगा, दूसरा मैं बनूंगा, बुला ले। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है अली अकबर भाई कि इख्तियारात बराबरी के हों। ये इख्तियार बराबरी भी होंगे। अगर ज्यादा मुश्किल होगी तो ये जो विरक साहब बराड़ लगाते हैं जहाँ पे दोपहर को ये लोग बैठे थे वहां पे आ जाएं, वो भी न्यूट्रल ही है किस्म की। नहीं उधर नहीं, अपना इधर ये ज्यादा बेहतर है। अली अकबर उसकी वजह है कोई। जो है ये न्यूट्रल है, इधर आ जाएं। हाँ जी, अगर इख्तियार वो पूरे देते हैं और मलिक साहब की रिकॉर्डिंग ऐसी है कोई कि जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि 2 पहले मॉड रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं ना अली भाई, अगर उनके पास हुई तो हम चलेंगे उधर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जुबान की है फिर उस पर तो पहरा देना चाहिए ना। जी नून साहब ने जो कोई यार थले मेरे ख्याल आ गए ना। हज़रत नून साहब उत्ते आ जाओ सरकार, चोरी समझ पता कौन था आईडी का। आप ही उत्ते आके चढ़ के सुना रहे हो मलिक साहब। गए हो रिकॉर्डिंग वाले आओ। मलिक साहब टाइम ही लगता है, काम से बंदा गया उससे। वो मैंने लग गया जानी है मलिक मोटरसाइकिल पे साहब, गया या पैदल गया है। जाएंगे फिर आएंगे। रिकॉर्डिंग की बनाते नहीं लगती। ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸਾਈ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਬਰਾੜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਸ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਆਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਛਾ, ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਲੁਤਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹ ਤੁੰਨਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਨਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਡ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਾਮੂ ਸਚਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਮਲਕ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ? ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मलिक साहब गुस्सा ना हो, ये शान साहब बड़े अच्छे भाई हैं। वो अच्छे हैं या गंदे हैं, मेरे साथ वही मैं अच्छा काम जो मेरे साथ अच्छा है, जो मेरे साथ मैंने अच्छा आपको नहीं है कुछ बात कहा करके नहीं है, मैंने मलिक साहब में ऐसे पैदा हो बात जाए, की। मैं क्या करूं? ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ। मैं अगले ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ शान दोस्त, कपड़े आप ला के बागती तत्ते तवे ट्रेन ते पे पा ना देना चढ़े है, ना। पता नहीं। ये तो फिर होता है ना, अगर आपका अपना ही भाई आपके साथ गलत करे तो फिर इंसान का वो क्या है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, फिर क्या कर सकते हैं। ये बात सच है आपकी। नहीं, ये तो दोस्त बात है। और वो मलक साहब की जो फैमिली की पिक्चर लगाई है, बहुत मतलब अफसोसनाक बात है। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जो वो किया है उन्होंने, तो उसको तो बिल्कुल। बाकी गर्मी सर्दी फिर वो मिजाज का एक हिस्सा है, अक्सर वो मामलात आ जाते हैं, तो चले वो कोई मसला नहीं, उस पर ही बहरहाल करना चाहिए। नून मलिक गुम साहब, गया ने मेरी रिकॉर्डिंग लैन गए ओए ओड़े इश्तिहार दियो, जाके इश्तिहार दियो पाकिस्तानी अखबारां ते क्या नाम है न्यूज ते जाके के हजरत नून साहब रिकॉर्डिंग लेने गए थे, गुम हो गए, लापता हो गए। यार ये अवैध, ये जो पोस्टर लगाया बड़ा मैनी फेज है। हाँ, ये बहुत मैंने मैंने भी अभी पढ़ा है। ये क्या है यार, ये जो आपने लगाया मैंने अभी पढ़ा है पोस्ट। वो रिकॉर्डिंग आ गई है मेरे पास, वो वाली जिसमें वो उसमें 10 दफा का है। और आज मुझे कहते हैं, नसरुल्लाह दोस्त आए हैं, कहते हैं कि भाई अपनों पे पर्दा डालते होते हैं, पर्दा डालो। ना ये मलक साहब को गाली उन्हें निकाली? ओपनली कह दी थे। नहीं मलिक नहीं, साहब को सभी निकाली? लंडियों को, सभी को निकाली गई हैं। अच्छा, और बम्बास्टिक ने ताहिर भाई, वो पाकिस्तान आईडी वाले नहीं भाई, उनको वाटर भाई को और सीकर भाई को कहा है। वो तो अभी आपके साथ कहता बैठे है- हुए थे मैं जब आया। बम्बास्टिक हाँ, ने वो आए नहीं कहा ब्रदर, ये सुन लो, ये मुबशर रजा ने कहा, रूहानी फजान ने, बम्बास्टिक ने नहीं कहा। मैं ख्याल हाँ, वो आवाज तो गलती उनकी लग रही थी। नहीं, रूहानी फजान ने कहा है, बम्बास्टिक ने नहीं। बम्बास्टिक ये को कल हुसैनी साहब के शामिल ब्रॉड में करके लगे हुए कहा थे मेरे ख्याल से, मैं सुन रहा था वही थोड़ी देर। वही 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 सीन है। हाँ, ये वो था आपका मुबशर रजा रूहानी फिजान वाला। हाँ जी, जी। अच्छा, है आपके पास ऑडियो है नसरुल्लाह दोस्त? हाँ मेरे पास है, आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दो ना, मैं उसके ऊपर आपको सेंड कर देता हूँ। और 6 मिनट आगे मैं जाओगे send ना, कर देता फिर ये सीन आएगा। जी जी। नोवर्ड भाई आ गए हैं जी। नोवर्ड भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज दोस्त कैसे हैं? सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। यार आज आप उधर गए हुए थे, नोवर्ड भाई। शायन भाई, और किथे गया ने हजरत नून है, कोई ढूंढो जाके उन्हों। मलक साहब ने मुनाजरे दी पई है। मलक साहब ने आज मनाजरा आया है। मुनाजा आज पता नहीं कितने अच्छे बात है। मलक साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। श्याम भाई, उन्होंने आके तोहमत लगाई है मलक साहब के ऊपर, तो जाहिर है उन्हें फिर इंतजार तो होना गुस्सा है तो ना। आता है ना यार। चले मैंने वो सच्ची बात की है
کہ جب انسان بات کرتا ہے کئی دفعہ اسے یاد نہیں رہتا، اور ہماری عمر بھی اتنی ہے، ہاں سچی بات ہے. میں نے پہلے بتایا، شاید میں نے کہا بھی ہو، مجھے یاد نہیں ہے. آپ ریکارڈنگ سنا دو تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہ ریکارڈنگ ابھی لیکن تک نہیں آ شایان رہی. ویسے 6 پھیرے آئے اوپر نیچے 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ ریکارڈنگ نہیں لائے. ویسے نو ورڈ ملک کی نا لاجک تھی بات میں کہ کہتے ہیں 8-10 دفعہ گیا ہوں میرے ساتھ، انہوں نے شاتمیت کی ہے اور ہوتا ہے نا، تو ہم جب میوٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے ان کو آپشن دی اس براڈ پہ آ جائے. اس وقت کوئی 70-80 سے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے آنا ہے، یہاں پہ آ کے بات کر لے، اپنی مرضی کا موڈ بنوا لو، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے تو یہاں بات کر لیں، یہاں نہیں کرنی. تو احمد نذیر صاحب کی براڈ وہ تو مہمدی نہیں ہے نا، ان کی براڈ پہ چلے جو، وہ ملک صاحب کے دوست ہیں، ادھر چلے جو. تو ایک جائز مطالبہ تھا کوئی. لیکن وہ مانے نہیں. لیکن جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ نیوٹرل براڈ جو ہے وہ ان کو نقصان دے گی. وہ کیسے وہاں پہ میوٹ نہیں لگا سکیں گے نا، گالم گلوچ نہیں ہو سکے گی، بدتمیزی. ہاں یہ بات ہے یار. ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ ڈاکٹر پیراڈاکس میرا دوست ہے، اس کے ساتھ علمی بحث کرو. PhD ڈاکٹر ہے، وہ کمال کا آدمی ہے. ہاں بالکل. میں اس کی تعریف ہمیشہ کرتا ہوں، علم والا بندہ. اور الجھا ہوا کس نام سے آئیڈیا؟ ڈاکٹر پیراڈاکس. وہ ریئل لائف کے ریئل لائف کے PhD ڈاکٹر ہے. وہ کرسچن ہے، بہت اچھا انسان ہے. آپ کے ساتھ بولے گے آپ جج نہیں کر سکو گے، یا ایسی باتیں ہمارے بارے میں اسلام کی کرتا ہے. اگر بتائے نا تو بندہ سمجھتا ہے مسلم ہے، نالج والا بندہ ہے. یقین کریں یہاں پہ بڑا ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ سچویشن ہے براڈس کے اوپر. یہ یس بہت مشکل سے آپ کو بہت اچھے لوگ جو ہے نا بہت مشکل سے ملتے ہیں بات کرنے کے لیے. اور اگر کچھ لوگ ہیں ان کو ہم نے شاید اس قدر تک آئی ڈونٹ نو اس کے لیے کیا رائٹ ورڈ ہے، لیکن اتنا پوزیسو بنا دیا ہے لوگوں کو کہ جو اچھے لوگ بھی ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے کھونا شروع کر دیا. ایسے ہی ہے. اچھا میں اگر اپنی بات کروں، آئی ڈونٹ نو میری پرسیپشن غلط بھی ہو سکتی ہے. میں بہت اور پیراہے میں نا یہ دیکھتا تھا ایک بار صاحب کو نا، یہ مطلب میرے پاس جو ان کا ڈیٹا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے یہ ان کو ایز اے ابیوزر اور وہ مختلف پیراہے میں ثابت کیا نا ان کو. اچھا اب وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ ان کے منہ سے ادا ہوئے ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے، ان کو کتنا ہائپر کیا گیا ہے، کیا ریزنز کیا ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی وہ آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے چند آرگومنٹس سنے جو کہ بڑے انبائسڈ اور بڑی ریئلٹی پہ بیس کرتے تھے. اب میں بھی ڈرتا تو میں ہوں کہ میں یار ان سے بات کروں تو میرے لیے بھی وہ، لیکن ان کی بات بڑی انٹلیکچولی اور بڑی ٹھیک بات تھی. وہ میں نے چاہا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر یہ بات تو اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود اس پیراہے پہ لے آتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشنس، اور اس حد تک لے آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ یا تو گستاخی کا مرتکب ہو جائیں یا گالم گلوچ تک پہنچ جائیں. بڑی غلط چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نا میں بتاتا ہوں، علی اکبر کو یہ پرووک کرتے ہیں. علی آپ کو بتا دوں، یہ دوست آپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حافظ قرآن ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے. اس سے پرووک کر کے اس طرح کی باتیں نکلواتے ہیں، ورنہ یہ بندہ بڑا اچھا بندہ ہے. نو بٹ صاحب تریفا ہوں کٹ کے یار شرم آندی ہے. میں نے ویسے ہی چھوڑ دی. اچھا وہ نہیں آئے نصر اللہ میری جان، وہ نہیں آئیں گے، میرا نہیں خیال وہ آئیں گے، کیونکہ آنا ہوتا تب تک آ چکے ہوتے.
ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਹੀ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ अच्छा वो एक और बात है, कुछ लोग जो होते हैं ना नसरुल्लाह दोस्त, वो एक सेफ जी जोन में अपने आप को ना कंफर्ट फील करते होते हैं, यस यानी उससे बाहर नहीं वो आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे बाहर गए तो हमारा वो जो है वो नहीं चलना। जी जैन साहब आ गए हैं अवैध देखें जी जैन भाई आ गए हैं एक सेकंड। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में ले आया, बस दूसरे मोबाइल में सेंड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वैसे इधर अहमदी हजरात भी मौजूद है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ अगर किसी को एतराज ना हो तो। जी बहन बात करें। देखें भाई, जिस तरह आपकी ब्रॉड पे मैं कितनी देर से बैठी हुई हूँ, ठीक है ना, और मैं कितने कॉन्फिडेंस से आपकी ब्रॉड के ऊपर आ जाती हूँ। मेरा बस एक ये है कि मेरी दुआ है कि इस तरह का माहौल जो है ना सब बाकी अहमदी ब्रॉड्स पे भी मिले, ताकि जो बहनें हैं वो भी ऊपर जाके बात कर सकें, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ इसकी क्या वजह है। मतलब देखे ना कि इधर भी तो मैं बैठी हूँ, तो इस तरह का माहौल बाकी ब्रॉड्स के ऊपर क्यों नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह। ये देखें ये पर हर इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी है जो भी इल्म वाला बंदा होगा ना वो आपके मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब लॉजिक और मंतक के साथ देगा रेफरेंस के साथ देगा वो प्यूरिफाइड पर्सन होगा। तो जो पर्चियाँ लेके हवाले पढ़ गए एक दो अपने आप को स्कॉलर पेंट कर रहे होंगे ना आप वहाँ पे जाएंगी तो आपके साथ वही कुछ होगा जो पहले हुआ है जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। जो बंदा पढ़ा लिखा है या जिसके पास इल्म है उसको तो खौफ ही नहीं है वो किसी सवाल का भी जवाब दे देगा नहीं तो वो रिसर्च करके दे देगा लेकिन वो अपना एटीट्यूड लो द बेल्ट नहीं जाने देगा। ठीक है। अब अफसोस ये जितने भी स्कॉलर बने हुए हैं इनकी एजुकेशन पूछें तो हार्डली मैट्रिक होती है वो भी हार्डली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये मामला है जी जो मेरी समझ में आया हो सकता है मैं गलत हूँ ये मेरी ओपिनियन है। नसरुल्लाह भाई प्ले करूं? हाँ जी करते प्लीज़। जी सुने जरा। मैंने कई मरतबा इससे बात की है तो इसलिए जरा उसको रोकने के लिए आपने बात की अभी देखिए आपने भी कुछ लफ्ज बोले हमने चलो बर्दाश्त की है कुछ लफ्ज आपकी भी बातों में थे लेकिन हमने बर्दाश्त किया है चलो कुछ मलिक साहब की तरफ से लेकिन जो मसीह जो है वो तो तौबा इस्तग़फ़ार वो तो लायक ही नहीं है नालायक बंदा है वो बात क्या करेगा। आप इनके मलिक साहब के साथ मुनाज़ा रखें और मलिक साहब की लाइफ दे रहे हैं उनके ऊपर रखें क्या नाम है इनका भाई मैं इधर आज आया हूँ उसूली तौर पे अगला मुलाज़िम मलिक साहब हमारे पास है उसूली तौर नहीं ये तुसी के पहला आए हो मलिक साहब आज आए इजाजत दे दें मुझे कबूल है दो मेरे मॉडरेटर आप बनाओगे मैं सिनेटर बंदों को कहूंगा वो मॉडरेटर लाओ जी भाई बस ओके हो गया ना लाइव के ऊपर दो माशा 6 बजे के काम का टाइम है जी हो गया नसरुल्लाह भाई।
साहब की भाई ब्राड का मुझे नाम दिखाएं, जोसेफ साहब की ब्राड का कहो कि उन्होंने कहा हमारे पास आएंगे। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने पहले मुझसे बात की थी कि न्यूट्रल आमिर नजीर साहब की ब्राड होगी, फलां की ब्राड होगी। ये तो बातें वो पहले कर चुके, वो रिकॉर्डिंग लगाए ना, वो रिकॉर्डिंग लगाए, आदि मत अच्छा लगाए। हजरत बात तो सुने ना, बात तो सुनाए ना। सुने। देखें ये देखें, ये अहमदिया भाई, अगर उनको मैंने ऐसे टोंट किया ना तो मुझे फौरन से उतार दिया जाना है। ओ भाई मैंने कौन सा अगर मैं टोंट तमीज किया से आपको? कह रहा हूँ तो तमीज से बात करें। तो ये आपको ये तमीज, टोंट आपका इनसे कौन मैं सा 53 गुना कौन सा ज्यादा कर स्कूल है सकता हूँ। तमीज ये का? कुछ भी नहीं, एकदम से तुम्हारा बीपी हाई कर तमीज दूंगा का इनका कौन मैं। सा स्कूल है जहाँ पर तुम्हारे अपन ने स्कूल खोलो, मैं वहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ। ये ले, ये जातियात पे बैम दिया, ये ये कौन सी जातियात आपकी वो हो तमीज रही है? सिखा रहे हो ब्रोकर तुम डेकर है वो? आपका ये? नहीं, जिसको तमीज सिखा रहे हो, ये तमीज बोलना सिखाना, अहमदियत क्या नाम है आपका? ये तुम्हारी डिबेट पे तुम्हारी ईसाइयत ये है, ये डेकर है तुम्हारी आपकी ईसाइयत ब्रोड ये, का। तुम्हारी ईसाइयत। एक मिनट मलिक साहब प्लीज़, एक मिनट रुक जाएं जहन दोस्त। उन्होंने कोई टोंट आपको नहीं की है, वो नीचे आ गए हैं, हजरत नून आ गए हैं, उनको उठा लेता हूँ। भाई साहब अभी इन्होंने बोला है कि मेरी रिकॉर्डिंग चलाओ तो मैं आ जाने जाता हूँ, देना। मैं मुनाजरा कर लेता हूँ। अभी कैसे भी मुकर रहे हैं। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज़, उनको बात कर लेने दे, वो जिनके साथ उनकी बात है जहन दोस्त, आप म्यूट कर लें। जी जैन भाई, आपने रिकॉर्डिंग चला दी मलिक साहब की? आज जोसेफ भट्टी की रिकॉर्डिंग में नाम लिखाओ कि मैं जोसेफ भट्टी की रिकॉर्ड है, उसमें उस पर ब्राड पर आऊंगा, बताओ। हाँ जी बिल्कुल, आप माने हैं। जब मैंने ओ कहा भाई था दिखाओ आज ना रिकॉर्डिंग, तो माने नहीं दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखानी है। चलाई थी रिकॉर्डिंग, कोई इसमें जोसेफ भट्टी का नाम दिखाओ। जल्दी करो मलिक नहीं साहब। मन्ना दे रहे, नहीं जोसेफ का ओ भाई मौला ये साहब। बड़े मुनकर लोग हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ब्राड आमिर नजीर की होगी, ये ऐसी ब्राड पे मैंने पहले मना किया था। आपने आमिर नजीर का इनकार किया था। मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ये सारी बातें हो गई, बाद में मैंने कहा ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, जो आप आमिर नजीर की ब्राड इनके, मैं आऊंगा वहां पर, 2 मॉडरेटर हमारे होंगे। मलिक साहब पलटियां ना मारो ओ यार मैं कैसे लोग हैं यार, आप दिखाएं जोसेफ भट्टी का नाम दिखाएं, जोसेफ भट्टी का नाम दिखाओ। बिल्कुल था, उधर बात ही ये हुई थी शुरू से। आपके कहने में नहीं होना, मलिक रिकॉर्डिंग साहब, में होना मैंने चाहिए। कहा था, आपके आज का कहने में थोड़ी मुनाजरा है। मैं आपके पास आके कर रहा हूँ, उसूली तौर पे अगला मुनाजरा आपको हमारे पास करना चाहिए। करना चाहिए, मैंने आपका बात किया, ओके। आपने मुझे आमिर नजीर का ऑप्शन दिया था पहले, इन जैसे लोगों का ऑप्शन दिया था, वो रिकॉर्डिंग लगाओ। वो अच्छा, क्यों नहीं लगा आप रहे थे? ऐसा करें मलिक साहब, 2 मिनट उधर आए, 2 मिनट के लिए आ जाए, ना और करें क्या मुनाजरा, 2 मिनट? आए जरूर, आए जरूर, आ आप जाए बताएं, उधर। आप आमिर नजीर साहब की ब्राड पर क्यों नहीं आना चाहते? उधर मलिक साहब आप आए उधर, 2 मिनट के लिए और आ मैं जाए। जो कह रहा हूँ कि आप आमिर नजीर की ब्राड ओ पर मलिक- आखिर वजह क्या है? पहले आके आप आमिर अपने नजीर घर में लाजम करना है, एक न्यूट्रल बंदा है ना आपका ना हमारा, वहां पे आओ। नहीं तो ਜਦੋਂ मैं आख्या सी न्यूट्रल है अमन नजीर उदो तुसी मनदे नहीं सो मैं नहीं माना, लेकिन उसी के दौरान मैंने आखिर में कहा था ठीक है मैं आऊंगा। करो मलिक मैंने न्यूट्रल साहब, ब्राड की हामी भरी थी, मैंने तुम्हारे जोसेफ भट्टी की नाम की हामी नहीं भरी। मलिक साहब 1 मिनट बाद, 1 मिनट दे दे बस, मलिक साहब 1 मिनट दे दे बस। नून भाई उनका एतराज़ है कि इधर इसके अंदर ना जोसेफ भट्टी का नाम कोई नहीं है, चलें एक्सेप्ट करें नून भाई, ठीक है। अभी उधर ये अल्फाज थे मलिक साहब, इस बात से नहीं अभी आपने मुँह करना, ये आपके अल्फाज अब मैं नोट कर रहा हूँ। आपने बोला इधर जोसेफ भट्टी का नाम किधर है, रिकॉर्डिंग तो आपने ऑलरेडी पहले बोल दिया, रिकॉर्डिंग प्ले करो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। अब उन्होंने, उनके अल्फाज हैं कि हमारी ब्रॉड पे, तो नून भाई ब्रॉड लगाते हैं, ठीक है। जोसेफ भट्टी उधर आ रहा है, आप उधर आए। अब आपने इस चीज़ से नहीं भागना, अगर आप भागेंगे तो यार आप डिबेट से देखो, भाग रहे हैं। उल्टे ये लफ्ज तीसरा इस्तेमाल रास्ता ना नहीं। करो मेरे साथ, सीधे सीधे लफ्ज इस्तेमाल मैं किया माजरत करो। कर लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता हाँ, हूँ, माजरत कर, मैं लेकिन माजरत बात कर सुन लेता लो, हूँ। नून भाई ब्रॉड लगा लेते हैं। मलिक साहब सुन लो, अब अपनी बात चुप की और दोनों तुम चुप हो जाओ, हमारी बात सुन ली, खत्म। ऐसा नहीं होता, मेरी बात। इन्होंने पहले मुझे ऑप्शन दिए थे, आमिर नजीर से पूछे इन्होंने दिया था या नहीं दिया था। पहले मैंने इनकार किया, जब इन्होंने मुझे बाद में इसरार किया, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन आप आमिर नजीर का ऑप्शन तो आपने दिया हुआ है, आप उनकी ब्राड से क्यों भाग रहे हो? अपनी ब्राड पर क्यों करवाना चाहते हो? आखिर एक बात का जवाब दे मलिक साहब दो। और यार ये कोई बात नहीं है, मुझे बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो, शोर नहीं बचाओ बीच में। मुझे एक बात का जवाब दे दो,
आखिर आपकी अपनी बराडों में, मसीहत की बराडों में ऐसी कौन सी चीज है जो आप जोर सिर्फ अपनी बराडों पर दे रहे हैं, न्यूट्रल की बराड पर भी नहीं आया? और जो ऑप्शन आपने दिया था आमिर नजीर के ऑप्शन, वो मैं कबूल कर रहा हूँ कि उधर आ जाओ, कह रहे नहीं, उठे भी नहीं, सिर्फ साड़ियां बराडा। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ आपकी जबान नहीं है, यार आपने अजीब खुद गल मुझे आमिर है। नजीर की बराड एक का ऑप्शन सेकंड दिया मलक था। साहब, ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ मलक साहब एक सेकंड खरिश्ती यार एक मिनट गल ते सुनो भाई जी। यार 3 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। अर्ज है कि बंदे ने डिबेट करनी है, कोई झगड़ा तो नहीं करना, ठीक है। उन्होंने दे मलक साहब के खदशात ने कि माजी च उन्हां नाल बैड एक्सपीरियंस होया है 8-10 दफा, ठीक है। और उन्होंने को लॉजिक है, अगर तू इस बराड ते असीं क्या तुसीं कर लो, न्यूट्रल लोग हाँ असीं, अगर इहदे ते तुसीं मुतमिन नहीं तो जिहड़ी ऑप्शन मलक साहब नूं अमन नज़ीर की बराड ते दित्ती गई उत्थे कर लो। एक न्यूट्रल बंदा है, अमन नज़ीर साहब अहमदी भी नहीं ने, मलक साहब अहमदी दोस्त ने, ठीक है। यह एक जायज़ डिमांड है उन्होंने, कोई ये ते हुण तुसीं बज़िद दो कि उत्थे आओ। मलक साहब उत्थे जाना नहीं चाहते, तुसीं बज़िद दो, उन्होंने फोर्स कर रहे हो कि नहीं नहीं उत्थे ही आओ। बई अगर इलम की गल करनी किसी जगह तो भी जिथे तुसीं कंफर्टेबल हो आ जाओ। थर्ड पार्टी जिहड़ी है तुहाडे लई भी न्यूट्रल है, इन्हां लई भी न्यूट्रल है। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी हो गई। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੀ। 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। एक काम करो, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿਗਰਾ ਇਹ ਕਿਆ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤਕਾਓ ਨਾ, ਆਈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਕਾ ਦਿਓ। ਚਲਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਬਾਨ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਰਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਖਾਓ। मलिक साहब, मलिक दोस्त एक मिनट मलिक दोस्त, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी आ रही है आवाज़। नसरुल्लाह दोस्त, एक जायज़ बात कर लेते हैं ना, मलिक साहब उधर जाते हैं ना वो इधर आए, सारों को नीचे उतारता हूँ, होस्ट टू होस्ट कॉल कर लेते हैं उनको। क्या कबूल है, कबूल है, ठीक है, जायज़ है, ना इनकी ना उनकी। अब वो अपनी पर बैठे, मैं अपनी पर बैठा हूँ, गाली खत्म होगी जी, बात खत्म, क्या कहते बात हैं? हो जाएगी, होस्ट टू होस्ट कॉल कर न्यूट्रल ले। रास्ता बिल्कुल। देखिए जी, जो भी करना है ये मामला जाके जोजफ भट्टी से तय कर ले। वो बैठा है सुबह 9 बजे तक। हो जाए वो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है। नसरुल्लाह भाई की हो गया जे चोई साहब 9 बजे ਦੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਇਲੇ 2 comfort zone ਘੰਟੇ ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਸੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਸੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੋਜ਼ਫ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਊਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਨੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋੜ ਹੋਣਗੇ, 2 ਉਧਰੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 2 ਜਮਾ 2 ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰਟਨ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਸ਼ਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ नसान साहब नहीं मलक साहब आप दौड़ गए हैं मलक ना चला यार मुखन्नस का काम मैदानों में निकलना नहीं होता आप मुखन्नस नहीं बने आप बन रहे हो मुखन्नस नहीं मैं नहीं है मैं तो थोड़े घर आ के तो मुनाजरा कीता सी आप मुखन्नस बन रहे हो जंगली हुन गल कर जंगली क्या देता है इनकी बात सुनो इनकी बात सुनो मैं देखे ओ यार इसके म्यूट नहीं करोगे यार मैं जा रहा हूँ इसको म्यूट नहीं करोगे तो ये तो अच्छा भाई मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ बोलता रहेगा बात ये है प्यारे भाइयों बहुत अच्छी बात की एक बात इन्होंने की कि मैंने आमिर नजीर का कहा मलिक ने कहा वो जोसेफ का दोस्त है जोसेफ के दोस्त से मैं मना कर रहा हूँ तो जोसेफ की बरात में मैं कैसे जा सकता हूँ जंगलियों कोई अक्ल है कोई अक्ल वाली बात आती है तुमको जो शख्स जोसेफ के दोस्त का इनकार कर रहा है कि आमिर नजीर मेरा दोस्त है लेकिन वो जोसेफ का बहुत दोस्त है उसकी बरात में मैं नहीं जाऊंगा वो जोसेफ की अपनी बरात पर जाने की हामी भर सकता है या भरी होगी उसने नहीं बाचो मैं गैरत दवाई सी तुसी मान गए सो ओ चला गैरत तो बात तुम्हारे अंदर दवाई सी तो तुसी मने तुम्हारे अंदर अपनी गैरत नहीं जमी तुम मेरी गैरत के मलक साहब कहा था कि हम आपकी बरात पे आएंगे ओ जंगली इंसान मैं अभी भी कह रहा हूँ लोगों को मैंने कहा था मेरी रिकॉर्डिंग सुनाओ कि मैंने जोसेफ की जोश है मजे की बात सुनो ये उस वक्त मुझे आमिर नजीर की बरात का ऑप्शन दे रहा था अभी क्यों भाग रहे मैं कह रहा हूँ ठीक है आमिर नजीर की बरात पर आ जाओ अभी कह रहे नहीं हम मसीहों की बरात लाजमी है एक और इसमें क्या वजह है साहब इसमें ये बोलता रहेगा अकबर भाई को नहीं करेगा ये मैं बता दूं चौधरी नसरुल्लाह बैठा हुआ है म्यूट करके साथ लेके नहीं तो ये बोलता रहेगा मलक साहब तजुर्बा है ये चुप नहीं करेगा यार एक सेकंड देना साहब मलक साहब एक सेकंड यार मुझे बात करने दो एक सेकंड मलक भाई एक सेकंड हम नहीं जा रहे जी बात खत्म करो आधा सेकंड इन्होंने खुद मुझे आमिर नजीर का ऑप्शन दिया था अभी क्यों भाग रहे हैं मैं कहता हूँ ठीक है आमिर नजीर की बात पर आ जाओ अब क्या मुश्किल है अभी भी इन्होंने दोहराई है ये बात ये जब मैंने बात फरमा रहे हैं ऐसा ही है अगर आमिर नज़ीर भाई कोई गलत बात करते ही नहीं है वो किसी की साइड भी नहीं देंगे और मौका भी देंगे इनको चाहिए कि उनकी ब्रॉड पे आके आपके साथ बात कर लें बिल्कुल सही देखें पहली ऑप्शन जब मैंने दी थी सुन लीजिए प्यारे भाइयों 12 मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें से कुछ हिस्सा अभी जैन भाई ने सुनाया है अगर आप सारी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पहली बात ही मैंने ये की थी कि आमिर भाई न्यूट्रल हैं उनकी लाइव पे जाएंगे वो उसको मुनज़्ज़म करेंगे चलाएंगे तो वो ठीक है मलक साहब ने कहा जी नहीं ऐसा नहीं करना ठीक है दूसरी भी बार में मलक साहब को मैंने बोला मलक साहब काफ़ी बहस के बाद मैंने कहा जी देखें उसूली तौर पे मैं आपके पास आया हूँ मैंने मिर्ज़ा साहब का हवाला भी दिया था इनको आया हूँ और नेक्स्ट जो है आपको हमारी लाइव पे आना पड़ेगा मलक साहब इस पे मान गए कि हम आपकी बरात पे आएंगे अब मेरी है ना मेरी बरात पे आने की जुबान इन्होंने किया नहीं किया सब ने सुन लिया अब मेरी हमारी मैं जिस मर्जी पे ले जाऊं मलक साहब को दोहराना चाहिए ये इन्हें जुबान की हुई है रिकॉर्डिंग है हमारे पास करें जी फैसला यार ये आपकी ओपिनियन है वो बंदा कंफर्ट जोन में नहीं है वो तीसरी जगह पे जाने को तैयार हो गया अब क्यों जुबान से मलक साहब फिर गए हैं प्यारे भाइयों अस्सलाम वालेकुम मैं एक छोटी सी मैं उसके बाद फिर चला जाऊंगा बात जब ख्रिस्तियों की आती है तो जोसेफ एक बहुत बड़ा गुस्ताख है और ये उसके साथ ये ख्रिस्ती ग्रुप जो है ये शामिल हाल है ये मुझसे डिबेट कर लें ख्रिस्ती ग्रुप जो है अगर इनको परेशानी है तो वो मेरे कितनी पेश होने पे भाई
میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, میں تو آپ کو چیلنج دے رہا ہوں نا یار بھائی. تیرے نال کو گل ہی نہیں ہے, جا کے کتے اور گل کر. آپ کر لو کس بات پہ کرنا چاہتے ہو. او جوزف کو لے آؤ. جا کام کر اپنا, آپ تیرے کا نال گل ہی نہیں ساری. آپ کا جوزف تو بھاگا ہوا ہے, وہ تو گستاخ ہے. ذرا ختم نہیں ہوا, آپ نے اپنے کی آگے دعوت دینی شروع کر دی, پہلے تو کلیئر ہو جائے سر. یہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ علی اکبر صاحب, یہ مشکل کبھی بھی نہیں ہے, نہیں وہ کریں بعد گے میں یہ کر سب لیں ڈائلاگ گے. والے. بھاگے ہیں نہیں بھاگے, وہ بعد میں کر لیں گے, پہلے کہ تو رولا مکر دو سرکار. اکبر بھائی تسی مینوں پرانے جان دے ہو, تسی 2 منٹ ਲਈ ملک صاحب نو لے آ کے جوزف بھائی نال گل کا فائنل کر دو پلیز. مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوسٹ مجھے 2 منٹ مل سکتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ ادھر لے آؤ اس کو. یار یہ ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. نون جانا نہیں, یہ نون میں نے تیرے سے بات کرنی ہے. جوزف کے لیے ایک پیغام ہے, وہ لے کے جاؤ. مینوں مفتی ابابیل پیغام بات کی کر رہا ہوں. تیرے ہتھاں نو مہندی لگی ہے, جا کے اوتھے پیغام دے. اچھا بات دراصل یہ ہے نون صاحب کہ دیکھیں, بے کیوں پیغام دوں ہمارے مسلمانوں کے لیے نہ تو جوزف مسلمانوں کا جو ہے کوئی دوست ہے, کوئی بھائی ہے, نہ قادیانی. مسلمانوں کے لیے جس طرح قادیانی جس سب میں کڑے ہیں, اسی میں عیسائی آپ اور آپ کا جوزف بھی کڑا ہے. تو اینا گندی نسل دا کیڑا میں کہ تیرے تو گندی نسل پیدا ہی نہیں ہونی. مامے خان, وہ حضرت نون آپ نے بھی پہچان لیا اس کو؟ ہاں یہ سورنی کا بچہ یہ ابابیل ہے گاسی ابابیل. ایتھے آ کے مامے خان جی او مسلمانوں کو کیڑے مسلمان مننے آئے تھے چول جی صاحب تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کیا کریں, آپ گالی گلوچ نہ کیا کریں. یہ مسیح ہمیں سرکاریوں سے 1000 درجے آگے ہیں, کیونکہ مسیحوں کی تو وہ کتاب ہی نہیں ہے, ان کی اپنی کتاب ہے. تم اس کتاب کو مان کر اس کے انکاری ہو, ہم تم پر لعنت ڈالتے ہیں. ملک صاحب, مسیح ہمیں تم سے 1000 درجے آگے ہیں. مسیح ہمیں تم سے 1000 درجے آگے ہیں سرکاریوں. ملک صاحب, مسیحوں کی کوئی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مجھے بتا دیں. یہ بیٹھا ہوا ہے, ثبوت کر. حضرت نون صاحب آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ ایک منٹ, حضرت نون صاحب آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ثبوت دے دیں. ہم نے تو انجیل سنا ہے. کون سی؟ بن جامین صاحب میری بات سنیں سر, دیکھیں ہر بندے کی میں بھائی سننے ہر بندے کی. علی اکبر صاحب پہلے ارا سن لیں. آپ پرسوں ہمارے پاس بیٹھے تھے, ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس علم بھی ہے. ایک منٹ صرف دیجیے پلیز, جسٹ فار 1 منٹ. یار مجھے ہر روز نا رولز بتانے پڑتے ہیں, تربیت سکھانی پڑتی ہے, تو پلیز یار آپ اپنی تربیت, جو اچھی تربیت آپ کی ہوئی ہے سارے بھائی, یہاں پہ شو کیا کریں, کسی کو ٹون نہ کریں. اچھی کسی کے پاس ہو تو شو کرے نا جی, ہے کوئی نہیں شو کی کرے. جی ایک بندہ بات کر رہا ہو, دوسرا خاموشی سے سن لے پلیز. ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے میوٹ کرنا. یہ ابابیل نے آ کے نہ 3 میں نہ 13 میں صاحب ہوسٹ کر لیں, جوزف صاحب کو بلائیں, ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جائیں میدان میں. ملک صاحب آپ ایسا کریں, 1 منٹ اکبر بھائی کے ساتھ. نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا, آپ ان کو یہاں لے آئیں. جوزف ہمارا بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے جوزف, ہمارا کوئی علمی اختلاف ہے, انسانیت کے ناطے میں ہم سے پیار کرتا ہوں, آپ سے. چلے آ جائیں ادھر, 1 منٹ کے لیے آ جائیں, 1 منٹ کے لیے میری خاطر آ جائیں. ملک صاحب کدھر ہے, مجھے براڈ شیئر کرو, میں آتا ہوں جی 1 منٹ میں. جی اکبر بھائی آپ بھی آؤ. مجھے بھی ساتھ لے جائے اپنا فرشتی, میں بھی ساتھ جا کے دیکھوں. علی آپ بھی آؤ. یار وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ وہ لازمی آنا چاہیے, ان کو لازمی آنا چاہیے. نصر اللہ دوست, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. دیکھیں سب سے اچھا یہاں پہ نا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کر لو, ٹھیک ہے. آپ کسی کے جذبات مجروح نہ کرو, ڈس ریسپیکٹ نہ کرو, ڈس آنر نہ کرو, ایسے ہی ہے. وہی یہی سوال ہے اپنا وزیر قانون کہ وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتا, کیوں ملک کو مجبور کر رہا ہے. ملک کوئی مشن کر کے, اور وہاں پہ جا کے میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہونی بدتمیزی ہے. بالکل. ہوسٹ صاحب کیسے ہیں سر جی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں دوست, آپ کیسے ہیں؟ چلے کوئی ایشو نہیں, اتار دیا, یہ تو ہوتا رہتا ہے.
तो यार अब ठीक अभी है, आपका जो अभी वो ना प्लेटफॉर्म है। सॉरी मसला आप जो चल पुराना रहा है ना बनाएं। उसको पहले हल नहीं हल नहीं, कर मैंने ले। तो जोसेफ के लिए पैगाम देना था कि ये इतना प्लीज तगड़ा बंदा है, हमारे साथ दो दो हाथ कर लेना। नहीं नहीं, यार वो आपके नहीं साथ पहले करेंगे अब मलक अभी, साहब के मुझे साथ पता उनकी है। बात चल रही है, मैं तो फिर इसको आपके साथ उनकी चौधरी बात। साहब, मैं तो इसको पुकार पुकार के जो है ना थक गया हूँ कि जोसेफ तूने हमारे ही फेंके हुए टुकड़े, सॉरी, हमारे ही दिए हुए हवालों से तू डिबेटर बन गया है, मुनाजिर बन गया है, और अब तू इस्लाम ही को जो है ना जुबान दराजी करता है। तुम्हारी हर अब ब्राड में तू मैं कुरान जवाब दूं, टारगेट करता है, इस्लाम मैं टारगेट जवाब करता है, दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब टारगेट अभी करते हो। मैं तो तेरी इतनी जवाब दूं आपको। औकात बढ़ गई जोसेफ ईसाई और नून कि तू पीठ पीछे हमें गालियां दे माँ बहन की, और हमारे अब सामने तू अभी इस्लाम मेरी को बात तो टारगेट करे। सुनो, ब्रेक लगाओ, वो मेरी बात सुनो। मैं गया था एक दफा, इन्होंने शातमियत की वहां पे। जब देखो कोई इंसान आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होता, हमारी जानें उनकी इज्जत और हुर्मत पे मेरी कुर्बान। मेरी बात तो सुन ले मैं वहां चौधरी से साहब भागा और हूँ। होश साहब, आप भी सुन ले। देखिए ये हमारा अकीदा है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। मैंने जो बात की कि हमारे लिए ईसाई और कादियानी जो खुद को अहमदी कहते हैं, ये दोनों एक ही पलड़े में है, एक ही सफ में खड़े हैं। आपके लिए अल हो कुफ्र सकते हैं, मिल्लतुम लेकिन हम तो अपने आप को वाहिदा, देखो। अब अभी ये बात सुनो, हमारा ईमान है, अभी अकीदा है बात सुन लो। चौधरी साहब। आपका ईमान मेरी है, बात सुन ले, लेकिन मेरी बात आप सुन ले। मैं मेरी यहाँ बात पर पहले न तो सुन लो। कादियानियों की वजह से आया हूँ। अजीब बंदा है यार, जाहिल इंसान। फिर तुम्हारे ईमान तुम क्या समझते हो? हमारी जूती को परवाह नहीं है। ना करो दोस्त, हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। ये क्या तरीका कार है दोस्त, आप हमको किधर में लाई जा रहे हो? जाहिल है यार ये, कुछ नहीं। अगले दिन वो अजीब अजीब बातें कर रहा था कानून की, मैंने इसे समझाया, पता ही नहीं इसको कुछ भी। अच्छा मलिक साहब, नसरुल्लाह दोस्त, आपके पास दूसरा फ़ोन है तो उसको ऑन कर लें जहाँ पे मलिक साहब गए। हाँ यार, वो मेरा फ़ोन दूसरा रह गया है गाड़ी में अभी। ओके ओके, मैं क्योंकि आजकल छुट्टी पे हूँ ना, वो बिजनेस लाइन है। कि मैं आपको बुरा लगेगा, और मैं अभी सुफियान भाई भी बैठे हुए हैं, ये गवाही देंगे, और भी बहुत सारे लोग। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, अभी ये अब नहीं आएंगे ना, ये मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपके मिर्जा साहब का ये मेरे पास पुतला बना हुआ रखा हुआ है, पता नहीं है। जोसेफ भाई की करंट ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, रुको गल सुनो, जानदी नहीं करो, रुको। गल है वे कि सानू को पागल समझे है कादियानिया ने कि साढ़े नाल टाइम फिक्स करके ते फिर आगे धड़ल्ले दे नालों बंदा कह रहे कि दिखाओ मैंने कहा है जोसेफ की लाइफ के ऊपर होगा मुनाजरा। मैंने आधा मिनट दे दे मुझे। अब देखें मलिक, मैंने वहां पे ये बात की थी, अगर इंसाफी करते हैं, सारे अपनी अपनी सुना रहे थे, ये हज़रत नून को पता है। मैंने भी वहां पे यही सवाल रखा था कि अगर मलिक साहब ने ये कहा है उस पुराने मुनाजरे के अंदर कि मैं जोसेफ की ब्रॉड पे आऊँगा तो फिर जाना चाहिए। मलिक साहब ने एक बात वहाँ पे की थी, मलिक साहब ने कहा था कि मैं शायद भूल गया हूँ, हो सकता है मैंने कहा भी हो, अगर आप सुना दें कि मैंने कहा है तो मैं जाके बात कर लेता हूँ। वही बात हुई है, मलिक साहब आए हैं, आप लोगों ने सुनाया है तो मलिक साहब तैयार हो गए हैं। मलिक साहब उस वक्त शुरू से यही कह रहे थे कि हो सकता है मैं भूल गया हूँ। मलिक साहब चले जी, बुलाएं जी मलक साहब को, बात शुरू करते हैं। यार बात तो शुरू करते हैं, लेकिन नून भाई ये कोई तरीका तो नहीं है ना यार कि हमें एक एक डेढ़ घंटा इंतजार करवाया जाए। मलक साहब ये माजरत भी करेंगे इसकी, ये 2 घंटे जो इधर बिठाया है इन्होंने, ये माजरत बनती है। मैंने उनको देखे, अच्छा उनको अगर इतना सा नीचे उतार दिया पैराडॉक्स भाई ने, मैं मेरे मॉडरेटर है, मैं तो नहीं कह रहा कि गलत किया, लेकिन आप लोगों ने उनको थोड़ी तंबीह की है कि भाई उनको गलत, तो इतना बुरा लगा आप लोगों को। हम 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, ये बुरा नहीं है। अगर किसी ने मलक साहब को नीचे उतार दिया है तो ये उनकी शान के अंदर गुस्ताखी हो गई है। नहीं वो बात नहीं हो रही सर। नूर साहब आधा मिनट दे दो यार, मैं ये गाल कर मैं भी जावांगा। देखो मलक साहब ने, मैंने आपको पहले बताया है, अपनी इकरार किया था कि हो सकता है मुझे भूल गया हो, अगर आप लोग दिखा दें, क्योंकि शुरू में जाकर अगर बता दिया जाता तो शायद वो आ जाते। अच्छा दूसरी बात जो मैंने करनी थी मेन, मेरा ख्याल से अच्छा हुआ है ये डिबेट नहीं हुई, क्योंकि डिबेट ने इस हाइट पे जाना था कि आपने जो पीछे पुतला रखा वो दिखाना था। अल्लाह ने अच्छा किया है, खुदावंद ने अच्छा किया है कि ये डिबेट नहीं हो सकी, वरना फिर गुस्ताखी भी होनी थी, बहुत कुछ होना था। तो इसलिए आप लोग भी परेशान ना हो, वो भी ना, आप पूरी तैयारी में थे, आपने वो
दिखा के साबित किया है कि आप इस तैयारी में नहीं, बैठे हैं। मैं तो रोज ही दिखाता हूँ, जब भी यसुल मसीह को आपके जमात के लोग आके गालियां दिखाते हैं मैं तब ये निकालता हूँ, इससे पहले मैं नहीं निकालता। जी जी मैं अभी, क्योंकि देखें ये तरीका नहीं है कि हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हों और जाके कितने लोगों ने मलक साहब को मैसेज किए हैं। आपकी बात जो है शाहरुख साहब, उन्होंने जाके मलक साहब को मैसेज किए कि जोसेफ के साथ आपका मुनाजरा है तो आप आए। नून भाई गए तो इन्होंने बात नहीं सुनी, पैराडॉक्स भाई गए उन्होंने बात नहीं सुनी, तैमूर भाई गए उन्होंने बात नहीं सुनी। ठीक है, वो मलिक साहब एक महफिल में बैठे थे, नहीं पता चला, लेकिन अब आ तो गए थे यार। नून भाई आए थे, ऐसा ना नहीं तो कोई मसला नहीं, उनको दोबारा बुला लें, दोबारा बुला लें। अगर उनको नीचे उतार दिया तो कौन सी ऐसी गुस्ताखी हो गई है? हम अगर 1-1.5 घंटे से बैठे हुए तो कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, तो उनको अगर नीचे उतार दिया तो कोई गुस्ताखी नहीं है। एक मिनट अकबर भाई आप शेयर करें। अकबर साहब, हाँ आप यहाँ पे बैठे हैं, आप बताएं कि अगर ये यसुल मसीह को गाली देंगे तो मैं क्या करूंगा उसके? मुझे क्या करने की इजाजत है? अगर कोई आपकी जमात का बंदा यसुल मसीह को बिला वजह गाली दे, वापसी आपको पूरा राइट है गाली देने का। ठीक है, बुलाएं उनको। बुलाना कैसे उनको? शेयर करनी है। नहीं बोलो, कोई मसला नहीं, उनको आवाज दें, वो आएंगे। ये सीसीपी साहब बैठे हैं, उनको कहीं जाके लेके आए। अगर हम 1 घंटे इंतजार कर सकते हैं, उनको 2 मिनट नीचे उतार दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? जोसेफ भाई 2.25 घंटे के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, आप चले वो उनके साथ तो पहले ये बताएं कि किस बंदे ने, जमात के बंदे ने आके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दी है? यार अभी थोड़ी देर पहले, कोई 1-1.5 घंटा पहले नीचे आपका शाहरुख पूरी गालियां दे रहा था। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लोग बराडें लगा के गालियां दे रहे होते हैं। एक आधा बंदा पागल, अगर देखें एक बंदा अगर पागल हो, जरूरतुल बगाया है हम कहते हैं। नहीं देखें कुर्ती भाई, देखें एक आधा बंदा पागल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करता है, वो लानती है, खंजीर है, जरूरतुल बगाया है। जो हजरत ईसा की गुस्ताखी करता है वो भी लानती है। बस वो आएंगे ना थोड़ी देर पहले। की शान में गुस्ताखी करता है, वो लानती है, सुअर का बच्चा है। जैन भाई आप बार बार लिख रहे हैं कि क्या गलत हो गया, मुझे बता दें। क्या उनकी इज्जत ज्यादा है, हमारी इज्जत कम है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ जोसेफ भाई, 1 मिनट मुझे पूरा दीजिएगा बोलने के लिए, फिर आप बोलिएगा। हजरत हम भी कोई, आप किसके लिए बैठे हैं? आप हम लोगों की इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने 2 घंटे दिए हैं ना, तो मैं इधर जॉब पे, मैं कैमरा खोल के दिखाता हूँ, मैं जॉब पे खड़े हो के मैं अपने ऑर्डर भी साथ लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इधर भाग के रिकॉर्ड मेरे केड़े पे हो दिया, ना मैं मसीह है ना मैं अहमदी है। हम आप लोगों को सुनने के लिए बैठे, हमारा नहीं टाइम से आया हुआ। उधर बैठ के तरले कर के लेके आए हैं, आते साथ वही काम हुआ, उसी चीज़ जिस चीज़ का डर था वो हो गया। हजरत आप थोड़ा सा, हम हमारे लिए बैठे हुए हैं ना, आप हमारी इस्लाह के लिए बैठे हैं, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बात कर लेते। ये बिल्कुल गलत हुआ है, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक हो गया कि जोसेफ भट्टी के ब्रॉड पे मेरे साथ जो है ना वो ये सीन होता है, वो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल क्लियर करके वो चला गया। अब उसके सिर्फ 10 सेकंड आपके 2 घंटे के ऊपर भारी पड़ गया, मेरे सेंस में ये बात है। थैंक यू। प्यारे भाई होगी बात आपकी। उनका मौक़िफ़ किस तरह से ठीक हो गया? एक शख्स ने खुद मुनाजरा तय किया है, आप ये कह रहे हैं कि जी वो कह रहा है मुझे याद नहीं रहा। ये कैसी बात है कि एक बंदा मुनाजरा तय करता है किसी के साथ और उसे याद ही नहीं है? ये और तो फिर आप जाके उसको तरले करवा के लेके आ रहे हैं कि आओ मुनाजरा कर लो। भाई वो कौन सी ऐसी बड़ी हस्ती है? अच्छा 1 मिनट से बात करने दे, सुफियान भाई को बात करने दे, फिर सबको मौका देंगे। स्टार्ट से ही हमारे बंदे जाकर उसे कह रहे हैं, 1-1.5 घंटे से 1.5 घंटा हो गया, जोसेफ भाई टाइम कम बता रहे हैं, 1.5 घंटे से उस बंदे को जाकर कह रहे हैं, उसे पता है कि मुझे बुला रहे हैं, फिर उसे ये भी याद है कि मेरा मुनाजरा तय हुआ है, और सारे ये सब झूठ फ्रॉड है। ऐसे ही मतलब किसी को जलील नहीं करना चाहिए। अब यकीन करें कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरी टांगें इस वक्त पाँव सूज गए बैठ के, और ये जब मैंने यहाँ से निकलना है तो वो कहाँ मेरा घर है। हमने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए हैं भाई इस मुनाजरे के लिए। उस नवाब के बच्चे को नीचे उतार दिया तो जी वो कुफरे अजीम हो गया। उसने हमें 1.5 घंटे से यहाँ बिठाया और 1.5 घंटे से लोग जा रहे हैं उसको कहने के लिए, और वो कह रहा है मुझे याद नहीं है। याद करवाया लोगों ने,
یہ جان بوجھ کے ہمیں ذلیل کیا گیا, بےعزت کیا گیا. اب وہ آیا ہے کہ چلو جی میں تمہیں موڈیٹر بتاتا ہوں اور اب جو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کو نیچے اتارو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ تم مناظرہ کرنے اور ہم پر احسان تو نہیں چڑھانے آئے؟ دوسری زین بھائی آپ نے جو کام کیا ہے, آپ اتنی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہوئے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے. لیکن یقین جانے ابھی تھوڑی دیر کے اندر علی اکبر صاحب آپ نے جانا ہوگا تو آپ چلے جائیے گا, لیکن میں نے جو کام کرنا ہے میں وہ ابھی کروں گا. میں مرزا صاحب کا یہاں پہ پتلا رکھوں گا سامنے, اس کے ساتھ میں تھوڑا سا حرکت کروں گا اور پھر میں جاؤں گا, کیونکہ میرا غصہ واجب ہے, کیونکہ آپ کی جماعت کے بندے نے 2-3 گھنٹے انتظار کروایا, اور اگر اس کو اتنا سا کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ نیچے چلا جا, تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی. لیکن زین بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی خدا جانتا ہے اتنا کوئی بھوکا نہیں ہوں کوئی قادیانیوں سے. اس دن انہوں نے یہ طلعت ملک صاحب نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی یسوع مسیح سے زیادہ مرزا غلام قادیانی افضل ہے, تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا ان سے کہیں مناظرہ کریں, تو یہ فوراً مان گئے مناظرہ کرنے کے لیے. یا تو یہ مانتے نا, اور اگر مانے تو یہ بھولیں, اس کے بعد اگر یہ بھولیں تو ان کا قصور ہے. پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ آپ جا کے ان کو منا کے آئے, آپ کتنی دفعہ گئے وہاں پہ؟ آئے تھے زین بھائی نے آ کے بات, بلکہ پہلے گواہی دی تھی کہ آپ نے وہاں بولا تھا پہلے والے مناظرے میں کہ جوزف کی براڈ پہ ہوگی, لیکن انہوں نے بولا تھا کہ میں بھول گیا. انسان سے بھول ہو جاتی ہے, ایک بندہ بھول کے سن تو لیں. بی این صاحب, سفیان بھائی, میں جانے لگا ہوں, آپ لوگ اپنا شروع کیجئے. میں اتنا بتا رہا ہوں, ایک بندے سے ہوگی نا بھول, ایک بندہ آ کے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں بھائی بھول ہو گئی, آپ لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کدھر کیا انہوں نے. وہ تو آئے, انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ سناؤ, ریکارڈنگ سنائی, کہتے ہیں ہاں چلو لیکن اتارو سب بندوں کو نیچے بناؤ جو ماڈریٹر جو بنانے. یار یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ جزاک اللہ سر, ہم تو سننے کے لیے بیٹھے تھے, چلے وہ ختم ہو گیا, اب آپ اپنا شروع کریں. ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ہی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے. اب میں اگر مرزا صاحب کے پتلے کے ساتھ تو کروں گا. ان کا ایٹیٹیوڈ آتے ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم سب اس کے باپ کے نوکر ہیں. وہ نواب صاحب آئے ہیں, افسر صاحب, کہ چلو بھائی سب کو نیچے اتارو, میں تمہیں موڈیٹر بتاتا ہوں, اور شروع کرتے ہیں. حد ہی نہیں ہو گئی یار, یہاں سارے بھیڑ بکریاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو تم نے غلطی کی ہے, سب کو ذلیل و خوار کر دیا, 2 گھنٹے سے یہاں ذلیل و خوار ہو گئے. 100% دیکھیں سفیان بھی بات سنیں, 100% آپ کا مقدمہ اتنا قوی تھا نا, ادھر بھی اتنے بندوں نے ابھی بھی قوی ہے, ابھی بھی قوی ہے, ڈیسائیڈ کیا, آپ ابھی بھی قوی ہے. اس کا آتے ہی رویہ بالکل غلط تھا, یہ رویہ غلط ہے, سب کو نیچے اتارو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ حضرت نون صاحب لے کے آئے تھے ایک بندے کو کہ آؤ جی میرے ساتھ آ جاؤ, نہیں لے کے نہیں آئے, انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. ابھی یار ابھی بھی بات ہو رہی ہے, ڈیبیٹ فکس کرتا ہے جو صاحب ہو گئی یار, وہ بات منتیں کرنی پڑتی ہیں یار. ابھی جب پھر وہ آتا نہیں ہے, پھر اس کی جا کے منتیں کرنی پڑیں گی. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی حضرت نون صاحب گئے تھے, ٹھیک ہے منتیں کری, لگا دوں گا. انگریز سرکار حضرت بھائی اپنے لہجے کو ذرا ٹھنڈا رکھے نا. آپ ملک صاحب سے بات کرنے آئے ہیں, آپ کے ساتھی نے ان کی یار پلیز آپ رک جائیں, آپ رک جائیں 1 منٹ. کوئی بندہ کسی کو ڈالے بھائی حضرت نون کو اٹھائیں, حضرت نون کو ایک بار اٹھائیں. اچھا ان ملک صاحب 1 کے منٹ, دل میں کوئی شک نہ رہے. 1 منٹ پیارے بھائی, پلیز 1 منٹ سے مجھے اجازت. حضرت نون کدھر ہے؟ حضرت نون صاحب آپ نے ملک صاحب کے ساتھ زیادتی کیوں کروائی ہے اپنے براڈ پہ؟ حضرت نون صاحب 1 منٹ اجازت دے دیں, 1 منٹ. میں آپ سے کچھ بات کروں گا, آپ نے جواب دینا ہے. دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ 1 منٹ کے لیے آ جائیں, میں گیا, انہوں نے وہ آڈیو سنائی, میں نے اقرار کیا. آپ ادھر موجود ہوں گے تو میں نے اقرار کیا, ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بحث کریں, ان سب کو نیچے اتار دو. آپ اپنے ماڈریٹر مجھے اسکرین شوٹ بھیجو کون سے ہیں, 2 ماڈریٹروں کے نام میں دیتا ہوں, آپ ان کو اوپر اٹھا لو. ابھی میرے منہ میں یہی لفظ ہے کہ 2 ماڈریٹروں کا میں نام دیتا ہوں, اوپر اٹھا لو. تو آپ کے ایک مسیح ماڈریٹر بھائی نے مجھے اٹھا کے نیچے پھینکا اور کہا تو جانا نیچے جا کے بیٹھ. یہ ابھی مجھے بتاؤ, جہاں پر میری ایسی انسلٹ کی, اسی انسلٹ کی وجہ سے میں پہلے نہیں آ رہا تھا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو. ابھی آپ تو صرف معافی مانگ رہے ہو, میری براٹ پر آپ کے ساتھ توہین امیزہ اور اسلوب ہو, اور میں آ کے صرف سوری کر لوں, تو یہ اس کا علاج ہے؟ میں اب آپ سے یہی کہتا ہوں, میں نے آپ کو ایگری کر لیا کہ ریکارڈنگ میری ہے اور میں مان رہا ہوں, میں آپ سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں, نیچے اتار دو. لیکن آپ کے بندے نے غلطی کی, مجھے اٹھا کے نیچے پھینکا اور انسلٹی الفاظ میرے اوپر کہے کہ جانا تو نیچے جا کے بیٹھ. تو اب مجھے بتائیں کہ میں دوبارہ اس براٹ پر جاؤں؟ اب آپ عامر نذیر صاحب کی یہ نیوٹرل کوئی براٹ
न्यूट्रल, आप ब्राड का नाम लो, मैं उधर तैयार हूँ, रेडी हूँ। न्यूट्रल ब्राड जो ना मसीहों की हो ना अहमदियों की हो, कोई ब्राड का नाम ले लो, मैं उधर तैयार हूँ। जी मलक साहब देखें, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे से हम कभी इधर आता हूँ कभी उधर जाते हैं, इधर उधर दाएं आगे पीछे ये सिलसिला चल रहा है। 2.5 घंटे से मुसलसल ये बात की और फिर हमारी कावश ने रंग ले आया और हम आपको कामयाब हो गए उधर लेके जाने से। उधर आप गए हैं, आपने बड़े एहतराम से आप बैठे हैं उधर, आपको जब उतारा गया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उस पर माजरत करता हूँ। वो ना सिर्फ आपकी बेइज्जती हुई है, मुझे मेरी भी हुई है, क्योंकि मैंने जो 2.5 घंटे अपने टाइम के दिए हैं वो इसीलिए थे कि मैं किसी तरह मलक साहब को उधर लेके जाऊं, उनको पूरी रिकॉर्डिंग सुना दूं और फिर आगे बात हो सके। हम इंतजार, हम वेले नहीं बैठे हुए। और आई एम रियली वेरी सॉरी। अब आपकी बात आ गई, अब मेरी बात सुन लें। थोड़ी रह गई है, थोड़ी बात रह गई है, प्लीज प्लीज थोड़ी बात रह गई है। जहां तक पुतले की बात रही है, वो मैं बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी अमल का साथ नहीं देता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। शाहरुख खान आज गया है उधर, उसने यसूअल मसीह को इतनी गालियां दी हैं, पुतला सुल्ला कोई नहीं बनाया, उसने खाली टेप से तस्वीर लगा के कोट पहनाया है कुर्सी के ऊपर। मैं फिर भी इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने रवैयों को चेंज करना चाहिए। जब शाहरुख खान ने उधर गालियां दी हैं, वल्ला मैं आपको हल्फन बात कर रहा हूँ, इंतहाई गलीज गालियां बकी हैं। तीसरी बात एक और करना चाहता हूँ, ये अबाबील भाई है, मैंने इस बंदे के साथ सुलह दोस्ती करने की बड़ी कोशिश की है, बड़ी बार आपकी उनसे बात ही नहीं हो रही दोस्त। इधर हुई है ना, इसलिए क्योंकि उसने इधर आके एक मिनट, मैंने उतारा आपको। मलिक साहब प्लीज़ न लीजिएगा, 1 मिनट। जिनसे बात हो रही है उनको इसलिए मैंने उतारा है कि आपकी उनके साथ टोंट ना हो, यहाँ पे माहौल ना बिगड़े। मैं गालम गलौज को लो नहीं करता हूँ, ना मेरी ब्रॉड पे गालम गलौज होती है। उनको आपने गाली दी है, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है और मैंने उस वक्त शायद मैं अवे था, तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें यहाँ पे। चलें ठीक है, अभी 1 मिनट मुझे दीजिए नसरुल्लाह भाई। मलक साहब मैं सलाम दुआ कर लूँ भाई, अपना दर्द दिल दिन के बाद मिला है, मेरा दोस्त है। दर्द दिल भाई क्या हाल है? चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। चौधरी साहब देखें, किसी को भी कोई हमारे मुसलमान भाई को गाली देगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपको अच्छी तरह पता है नसरुल्लाह साहब। अगर उसने गाली दी है तो उसको इस चीज पे मादरत करनी चाहिए सबसे पहले। पास होगी है भाइयों, बोलो बात करो। और अगर मेरी किसी बात करने से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं हो साहब, मैं एक जनरल बात कर सकता हूँ किसी को टारगेट किए बगैर। ये दर्द दिल भाई मेरा मुसलमान भाई है, तो इनसे भी एक गुजारिश है और एक जनरल बात है। प्लीज मैं ये कहूँगा, दिल भाई वैसे एक शिकवा मुझे भी है। मलिक साहब को पहले बात करने दें, जो मलिक साहब से ज्यादती हुई है, क्योंकि ठीक है, फिर आप जब समझे कि बात खत्म हो गई फिर मुझे मौका दे। हाँ जी, 1 सेकंड अबाबिल, 1 सेकंड देना। दर्द दिल भाई मुझे भी एक शिकवा है, बोलो करूं? जी सर हुक्म। ये आपके मुफ्ती साहब आए हैं, इन्होंने आते ही बड़ी बाइस स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि हम आपको और क्रिश्चियंस को एक ही पलड़े में रखते हैं। सर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं ना, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, वो अपने बयान के खुद नहीं, देखें ये मेरे नजदीक तो एक प्रेजुडिस स्टेटमेंट है। आप जानते हो, यू आर डॉक्टर। इसी वजह से मैंने उतारा था। दर्द दिल दोस्त, आप इतने दिन से बैठते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने दरगुजर किया, चले मैंने उन्हें कहा वरगुजर नहीं है चौधरी साहब, मैं अभी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। दर्द दिल मुफ्ती में हूँ मैं, दर्द दिल वही करेगा जो मैं उनको बोलूंगा, समझ आ गई ना? तो आप इसको छोड़े, इस बात को। दर्द दिल, अब इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं यार? चौधरी साहब आप काइंडली थोड़ी देर के लिए मेरी खातिर जो है ना अपने इस अपने बात रखें काइंडली। मैं चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब जानते हो कि लॉजिक तो मेरे पास होती है हर बात की। साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे लिए काबिल इल्जाम है। मैं कह रहा हूँ उनका जो इशू है ना उनके साथ सॉल्व हो जाए। दर्द दिल दोस्त प्लीज पहले एक इशू सॉल्व करने दें प्लीज। क्या कहते हैं? जी वही कह रहा हूँ सर, वही
हाँ हजरत नून साहब, मेरा आपसे सवाल है। हजरत नून साहब, मलिक साहब को आप लेके गए थे यहाँ से? लेके गया। मलिक साहब मेरे भाई हैं। आप पहले आपको यही बात हमने यहाँ पे कही थी कि मलिक साहब जो हैं उनको ना ले जाएं। जो आपकी ब्रॉड लगी है उनको होस्ट टू होस्ट कॉल कर लेते हैं, ना वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर सकेंगे और ना हम उनको, और दुनिया देख लेगी कि कौन किसको डिसरिस्पेक्ट करता है। यही बात की थी नसरुल्लाह भाई, आप मौजूद थे यहाँ पे? फिर यही बात हुई थी। आपने कहा था नहीं 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट के लिए मलिक साहब उधर आ जाएं तो हम इनसे बात करना चाहते हैं, फिर भला ये वापस आ जाएं। ऐसी हजरत नून आपने बात की है? डिसरिस्पेक्ट इन ए सेंस नहीं मैं देखिए, मेरी ब्रॉड का रूल है टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन हो उसका जवाब देते हैं। जी, लेकिन तासुर गलत नहीं जाना चाहिए कि मलिक साहब तासुर गलत नहीं होगा, तासुर गलत नहीं होगा दोस्त। इसको क्लियर ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी ना? बिल्कुल ऐसे हुई थी। ओके मलिक साहब, जब मलिक साहब की मैं कहता हूँ कि ये फराख दिली है और मलिक साहब एक नहायत अच्छे और शरीफ और नफ्स इंसान है। नसरुल्लाह भाई, इसमें कोई शक तो नहीं रह गया कि मलिक साहब को जब ऑडियो सुनाई गई है मलिक साहब आपके साथ गए हैं? बिल्कुल गए हैं। और मलिक साहब जैसे ही ऊपर गए हैं, आपके बिहाफ पे, आपकी रिस्पेक्ट पे मलिक साहब उधर जा रहे हैं, और मलिक साहब को आपने अपनी ब्रॉड पे डिसरिस्पेक्ट करवा के फ़ौरन नीचे गिरवा के, और जो उधर बंदे बैठे हुए थे उनके सामने इनको जलील करवा के इधर आप आ गए हैं कि नहीं मैं माजरत करता हूँ। मसलन एक बंदे को चौक में खड़ा करके आप थप्पड़ मरवा दें और कहें नहीं माजरत, अपने घर ले जाएं, अपने महल्ले में ले जाएं, और उस बंदे को उधर बेइज्जत करवा के बाद में आप उसी के घर आके कहें नहीं ये माजरत, मैंने माजरत कर रहा हूँ आपसे। हजरत नून दोस्त, क्या कैसा रवैया? बोलने की इजाजत देने अगर आप। हजरत नून, मेरा एक लास्ट सवाल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोबारा से मुझे नीचे उतारें, क्योंकि मेरी इधर 5-7 दफा इंसल्ट हुई है। आप मुझे नीचे जब उतारते हो तो एक मिनट नसरुल्लाह दोस्त, आप बताइएगा कि जब बात हो रही होती है मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैं होस्ट आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। हमने इनको 3 ऑप्शन दी। पहली ऑप्शन ये थी होस्ट टू होस्ट आ जाएं, दूसरी ऑप्शन थी इस ब्रॉड पे आ जाएं और अपनी पसंद का मॉडरेटर बना लें, आप भी, एक आपकी तरफ से एक हमारी तरफ से। तीसरी थी आमर नज़ीर साहब जो कि अहमदी नहीं है लेकिन वो दोस्त हैं, तो उनकी ब्रॉड पे चले जाएं। इनको 3 ऑप्शन दी थी और मैं मलिक साहब के उधर जाने के ख़िलाफ़ था, लेकिन मलिक साहब ने फैसला किया नहीं मैं चला जाता हूँ, तो वो चले गए। साथ में अली अकबर भाई भी थे। अब टेक्निकली ये मैं कहना नहीं चाहता, अब खरिस्ती साहब का कसूर निकलता है कि इनके ले जाने के बाद वहाँ क्यों इनके मॉडरेटर की जरूरत हुई इनके साथ ये रवैया करने की। अगर खरिस्ती साहब की वहाँ पे इतनी से नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ या ब्रॉड के ऊपर ग्रिप नहीं थी, तो इनको ये बात करनी नहीं थी चाहिए कि आपको लीड नहीं करना चाहिए था मैटर को। क्यों दर्द दिल भाई, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप मुझे बता दें। नहीं सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल सही। आप लोग बातें कर रहे हैं और अपना काका सबको प्यारा होता है, कोई मसला नहीं है इसमें। मैं गया हूँ लेके मलिक साहब को, बात करें आपके सामने रख रहे हैं, आप हमें गलत साबित कर दें। बात कर दें प्लीज, बात करने। एक मिनट मैंने सॉरी आपको म्यूट लगाया इस वजह से कि आपने कहा अपना काका सबको प्यारा होता है। ऐसी टोंट ना करें, क्योंकि टोंट हम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि नहीं नसरुल्लाह दोस्त? हमने बड़े महज़ब तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से आपकी गोशगुजार एक बात की है, आप उसका जवाब दे दें कि आपने हमारे भाई मलिक साहब जो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, आप अपनी गारंटी पे लेके गए थे कि आपके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, 1 मिनट के लिए आ जाए, और मलिक साहब यहाँ से चले गए आपके साथ, आपकी ब्रॉड पे गए, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट क्यों हुई है, इस बात का जवाब दे दें। 2 घंटे 2.5 घंटे लोग आपकी जगह पे मैं जवाब दे देता हूँ। जी मलिक आप बोल रहे हैं अकबर भाई। हाँ जी, वो हुआ इस तरह से अपना, मैं चूँकि मैं भी साथ था,
अगर ये लेके गए थे तो मेरा ख्याल है एहतजाजन जो उस बरात से फिर नीचे खुद भी उतर आए थे और यहाँ पे माजत करने भी आ गए। मेरा ख्याल इतना दबाव नहीं डालना, ये लेके गए थे चूँकि इनकी कम्युनिटी थी वो क्रिश्चियन, तो इनको शायद मान था कि वो रिस्पेक्ट। मैंने बात यही सवाल इनके आने के बाद वहाँ पे रखा है कि हज़रत नून साहब ले के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने हज़रत नून साहब को नहीं कहा था कि लेके आओ, हम तो खाली उनको भेजा था कि जाओ उन्होंने याद कराओ तो उसे गल कीती है। ये अब अपनी बिहाफ पे लेके गए थे। जब उन्होंने मलिक साहब को ड्रॉप किया, मैंने भी उनसे यही कहा कि आप लोगों ने गलत किया। जैन नाम की कैदी, उसने भी यही उनसे कहा अभी बैठ के कि भाई साहब आप पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे थे, जोसेफ साहब आप जीत रहे थे, मलिक साहब 10 सेकंड में आके यहाँ से मुनाजरा जीत के चले गए हैं। ये एक बंदा वो है जो अहमदी भी नहीं वो बात वहाँ कर रहा है। उसने कहा कि मलिक साहब 10 मिनट सेकंड के लिए आके मुनाजरा जीत के चले गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो उनके साथ किया है उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं भूल गया हूँगा शायद। फिर आपको उन्होंने कहा दिखाएं जोसेफ के अल्फाज, फिर आपने जोसेफ के अल्फाज दिखाएं तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर सबको उतारो मैं बात शुरू करता हूँ, तो आपने आइन फख उनको नीचे गिरा दिया। फिर मैंने उधर ये बात की है कि बिल्कुल अच्छा हुआ डिबेट नहीं, क्योंकि जो आप तैयारी करके बैठे थे, इस हज़रत नून को पता है वो एक पुतला बना के बैठे मसीह अलैहिस्सलाम के, वो पूरी तैयारी में थे, उन्होंने गुस्ताखियाँ करनी थी वहाँ पे। और जो मलिक साहब के साथ जो मलिक साहब को खदशात थे वो उन्होंने किए, मलिक साहब को ड्रॉप किया। हज़रत नून साहब को कोई कसूर नहीं है, वो आगे हैं पीछे उस ब्रॉड से एहतजाज करके नीचे आ गए हैं, पीछे आके माजत भी कर रहे हैं, तो इनको तो मेरे ख्याल कटहरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मुझे अच्छा, एक अगर मिनट ऐसी देखें, कोई बात है, मलिक मुझे साहब आप कर सिर्फ देना। 1 मिनट दे दें, मैं लोगों को अपनी बारे में बात बता दूं। देखें मुझे याद नहीं था और मैंने यही बात की, इन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने ये नहीं कि ये लफ्ज़ अगर कहे हैं तो आप सुना दें। इन्होंने सुनाए, उसमें पहली जो रिकॉर्डिंग सुनाई उसमें नहीं था कि मैंने जोसेफ साहब की हामी भरी हो के उनकी बरात पर जाऊँ। लेकिन दूसरी जब मुझे ये वहाँ लेके गए हैं, जोसेफ साहब ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई और उसमें मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, हज़रत नून ने कहा कि कल आप हमारे पास आएंगे जोसेफ की बरात पर क्या नाम है, जर्मनी टाइम के मुताबिक 7 बजे। मैंने इन्हें कहा कि 7 बजे पाकिस्तानी कितना टाइम होता है ये बता दे। फिर उन्होंने कहा 9 बजे। हाँ, मैंने जब वो सुनी तो मैंने कहा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ, अब सबको नीचे उतार दें। ये अल्फाज मैंने उन्हें कहे, आप सबको नीचे उतारें। आपके कौन से मॉडरेटर हैं मुझे स्क्रीनशॉट भेजें कि ये 2 मॉडरेटर हैं, मैं 2 मॉडरेटरों के अपने नाम देता हूँ, आप उन्हें मॉडरेटर पे बनाओ, मॉडरेटर बना दो तो मुझसे बात करो। यही लफ्ज़ मेरे मुंह में थे, तो एक शख्स ने मुझे उठा के नीचे फेंका और कहा तू तो जा ना नीचे जाके बैठ। अब मुझे बताओ कि मेरे साथ इन्होंने बहस करनी है, मेरी मिन्नतें करने मेरे पास आए हैं और मैं इनकी बरात पर फिर जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। इन्होंने पहले मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस है, इनके साथ हमेशा इन्होंने इंसल्ट पर बात ख़त्म की है, मसीह की मजाक, हंसी ठट्टा, उनके नाम बिगाड़, उनके ये वो दिस दैट ये करते रहे और मुझे इसी से डर था। बाकी इन्होंने मेरा क्या करना है कि मुझे इनकी बरात पर डर था। मैं यही चाहता था कि न्यूट्रल बरात हो और इन्होंने मुझे पहले ऑफर भी की थी आमिर नज़ीर की बरात, आज वो इनकार करें नहीं हमारी बरात। तो लाजम मुझे इल्म था कि इन्होंने कोई मंसूबा बनाया हुआ है, इन्होंने वो करना ही करना। लेकिन मैंने अपनी ज़बान के ऊपर इस बात का इकरार किया क्योंकि मैंने हामी भरी थी कि मैं आऊँगा। जब मैंने वो सुन लिया तो मैंने कहा हाँ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इंसान वो है, मर्द वो है जो अपनी बात से फिरे नहीं। लेकिन आगे से जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया वो आपके सामने है। उस सलूक से आप अंदाजा लगा लो कि ये आगे मेरे साथ इजाजत है एक बात क्या करने वाले थे। ठीक है मलिक साहब, इजाजत हो अगर आपकी तो मैं कुछ इजाजत तो आपने बात ख्याल है तो इजाजत की जरूरत फिर नहीं रहती, आप बोले। अच्छा। जी मलिक भाई, मेरा ख्याल है कि इसमें खरिस्ती साहब की कोई बदनीति हरगिज़ नहीं नज़र आ रही मुझे, क्योंकि जैसे उन्होंने 2 दफ़ा माजरत की है ना, माजरत खरा बंदा ही करता है। एक दूसरी बात, उनका क्या प्लान था, लेकिन एक चीज़ जो माजी में बार बार आजमाना नहीं चाहिए, आइंदा के लिए आप हमारे दोस्त हो, वहाँ पे जब वो तौहीन करते हैं मिर्ज़ा साहब की तो हमारे भी तो काबर हैं, इसलिए हमें हक पहुँचता है आपको ये बात करने का। आपने काइंडली दोबारा उनकी बरात पे नहीं जाना और इस मामले में खरिस्ती साहब को बरियो जुमा करें, क्योंकि वो आई हैं आपके साथ ही उधर से नीचे उतर आए, उन्होंने अपनी ड्यू डिलीजेंस कर दी है। ठीक है, आज और जो उसके बाद
क्या आपकी बात अगर पूरी तो होगी अब इनको ना, हाँ जी जी मैं आज के बाद आप लोगों से ऐद करता हूँ कि हम इन मसीह भाइयों की बरात पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत में गड़बड़ेशन है, वो आपके सामने है। न्यूट्रल बरात पर 24 आवर अवेलेबल है। न्यूट्रल बरात हो, उस पर जब जिस वक्त चाहे दोनों तरफ से जो काबिल कबूल हो बरात, उस बरात पर आएँ, हमसे बात करें और रिकॉर्डिंग करें, और जो उसमें गुस्ताखी करे, बदतमीज़ियाँ करे, उसको फिर उसके बाद छितर मारो, हम हो या आप हो। आप आ जाओ जब मर्जी है, 24 आवर अवेलेबल। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, सादिक और ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, और मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर हैं, उनके ग़ुलाम मसीह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम आपसे 24 घंटे 24 आवर और एवरी डे, और जिस प्लेस पे आप कहो जो हमें भी कबूल हो और आपको भी, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आज से टाइम मैं गेंद आपकी कोर्ट में फेंक रहा हूँ। जब आप चाहो न्यूट्रल बरात पर मुझसे बात करना चाहो तो मैं 24 आवर अवेलेबल। साहब मुझे तो इससे खारिज करेंगे आप, क्योंकि अगर आप मेरी ब्रॉड पे नहीं आते, जब मैं जाती अपनी लगाता हूँ तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि मेरा आपके साथ प्यार पुराना है और सभी जानते हैं पुराना प्यार है, तो मुझे इससे खारिज मत कीजिएगा। नहीं, मैं आपके पास 24 आवर आऊँगा, डिबेट करने नहीं आऊँगा। वैसे आपसे मुकालमा आप लोगों से करूँगा, 100 बार करूँगा। आप मेरे पास आते हैं, मैं आपके पास 100 बार आऊँगा, मैं डिबेट करूँगा आप मसीहों के साथ न्यूट्रल बरात पर। बाकी वैसे क्रिस्टी भाई वैसे आप खुद देखें कि वहाँ पे वो बंदा है इस काबिल को उससे बात की जाए, जिस तैयारी से वो बैठा हुआ था। वो जाती है, मैं उसका बिल्कुल उसका हक नहीं देता हूँ इस तरह की हरकत का। मैं नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा हुआ है। जब उतरा हूँ उधर से, जब मैं उतरा हूँ अकबर भाई, मेरा ख्याल है हम एक साथ ही उतरे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये नहीं पसंद करता हूँ, ये नहीं मुनासिब। आज देखें अमन नज़ीर भाई की लाइव चलती है, ये कोई ये बात नहीं है कि उधर कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हुआ है। मिर्जा साहब को क्या गालियां नहीं दी गई हैं, हर जगह पे दी गई हैं, हुआ है हर जगह। लेकिन इस तरह से आई डोंट नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल ऐसी हरकत। आज मलक साहब चले गए थे उधर, मुनासिब था कि मलक साहब को बिठा के कहते चलें जी बात करते हैं, डिबेट नहीं हो सकती है। 2-2.5 घंटे वेट किया, मलक साहब माजरत करें, और मलक साहब करते, मलक साहब की माजरत बनती थी। लेकिन जब उनको सुने बगैर उतार दिया गया है, दैट्स नॉट राइट। और फिर वो पुतला वगैरह नहीं दिखाना चाहिए था। मैं हजरत नून साहब, आपको मैं ओपन बात कर रहा हूँ, हम अहमदी जमात के हैं, हमारा अपना अकीदा गलत है या ठीक है वो अल्लाह जाने, हम जाने। लेकिन हम दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं हम उसका एहतराम करते हैं, और इंसानियत और इंसानों से प्यार करते हैं। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नॉन। हम सबसे प्यार करते हैं, आप हमारे भाई हैं। ऊपर नीचे गुस्से में हो जाती है, लेकिन हमेशा आपको पता है जब भी आपके साथ कोई बात हुई है हमने आपसे माजरत की कि हज़रत नून भाई हमसे गलती होगी, हमें माफ़ करो। आप एज ए इंसान हमारे भाई हैं, आपका अपना मज़हब है, आप जो अल्लाह को आपने खुद जवाब देना है। हाँ, जब आपने इल्मी और इखलाकी तौर पर हमसे बात करनी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, देखें आप जैसे भाइयों का जो कदर करते हैं, और बड़े दावे के साथ मैं कहता हूँ आज जमात अहमदिया इसके 99% लोग जो हैं मुझे इज्जत देते हैं। और ये नहीं है कि मैंने कोई इनके नीचे लगा हुआ था या कोई ऐसा किया, मैंने बड़ा सख्त बोला हुआ है। मैंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में बहुत सख्त बोला है, लेकिन जब मैंने देखा कि हद से ज़्यादा, तो मैंने माजरत भी की कि नहीं, ये रवैया मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं बेहतरी की तरफ जाना चाहता हूँ। दीन इस्लाम की बात ली जाए तो मुसलमानों का 99.9% मुसलमान मुझे कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत देते हैं, और मैं उनको इज्जत देता हूँ। और उसकी वजह बहुत सारी हैं, बहुत सारी वजह हैं कि मैं उनके दीन को इज्जत देता हूँ, उनके नबी को इज्जत देता हूँ, और मैं गुस्ताखियों का मुर्तकिब नहीं हूँ और ना इसके हक में हूँ। और जो करता है उसके खिलाफ मैं सरापा एहतजाज था, हूँ और रहूँगा। ये वजह तो एक सवाल है भाई, वो जिस बंदे का ये नाम ले रहे हैं ना, जी नाम ले रहे हैं डॉक्टर पैराडॉक्स, मेरा यार है वो। और यार वो बंदा बड़ा अच्छा है, इज्जत करता है। हाँ हाँ,
वो इतनी गुस्सा मैं इज्जत करता यार, है हमारी बेचारा मुसलमानों की। 2.5 घंटे से बैठा हुआ था, एक गुस्से में उसने उतार दिया। जैसे मुझे इधर 7 दफा उतारा गया, मैं इसको लाइट ले गया हूँ, नहीं तो मैं कहा लो जी मेरी बेइज्जती होगी, मुझे उतार दिया उसने। नो इट्स ओके, हो जाता यार है। ऐसे ख्रिस्ती भाई यार मुझे लेके जाओ उस ब्रॉड पे अभी। ओ यार ही इज अभी ना। वेरी नाइस, बड़ा नाइस बंदा और डॉक्टर नहीं पैराडॉक्स। नहीं सुनो तो हाँ सही, पैराडॉक्स तो जी, मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, पीएचडी हाँ डॉक्टर है। हाँ यार वो वो डॉक्टर सारा बंदा दिन है, हम वो सिर्फ गुस्से में आ गया कि काफी देर से बैठा हुआ था। नेदा इलाज करना मैं मैंने लेके जा इनवाइट करो ते केड़ी ब्राड है। तैमूर साहब ने माइक खोलिया, बड़ी देर तक तैमूर बोलने साहब आ वास्ते। गए। हाँ तैमूर भाई आप जी बोलें, जी फिर उसके बाद मुजाहिद भी कुछ बोलना चाहता है, और भी किसी को बोलने दें। तैमूर भाई, मुजाहिद भाई, किसी ने बोलना है तो। मैंने तो सिर्फ ये कहना था जी कि सृष्टि भाई बहुत अच्छे हैं और बाखलाक हैं, और मैंने कई दफ़ा इनकी ब्राड पे भी गया हूँ। और अब जो कुछ भी हुआ, अली भाई ने आके एक्सप्लेन भी किया है, तो उनको बार बार मुर्द इल्ज़ाम ठहराना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं 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 ठहरा रहे, वो बड़ी है बात है। जी जी, अच्छा थैंक यू। ख्रिस्ती एक काम करोगे आप, मेरा एक काम करो, पैराडॉक्स को सिर्फ इतना बोलो कि वो बंदा मलिक चौधरी नसरुल्लाह का बेहतरीन दोस्त है, बस इतना बोल दो तो देखो वो क्या कहता है। मुझे ये तैमूर भाई अभी लाइव लगी हुई है उनकी। यार उसका ना असल में वो बॉटम चलता है, व्हाट्सअप चलता नहीं उधर। जी जरा चेक करें जरा, अगर लाइव मलक साहब वो बड़ा ही स्वीट आदमी है, क्यों ऐसी चौधरी हरकत की साहब, मुझे नहीं समझ आ रही। चौधरी साहब हाँ जी एक जी छोटी सी जी। रिक्वेस्ट है सर, अगर मसला हल हो गया तो मुफ्ती साहब का जो मसला है नून साहब के साथ है वो भी हल करवा दीजिए काइंडली। नहीं नहीं, मेरा कोई मसला नहीं है दर्द दिल भाई। नहीं नहीं मसले तो दर्द दिल, मतलब ये है कि दर्द दिल। यहाँ तो हम आई ही मसलों के लिए है ना। ये मैं मसले बताता साल हूँ मुफ्ती तभी भाई, होंगे जब सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। अच्छा सुनो ये शहजादे, सारे मसले सुनो तभी तो हल होंगे। करने लगा हूँ हल। देखें, दर्द दिल भाई आप हो गए, शार्प शूटर हो गए, सेब हो गया, अब्दुल्ला हो गया, आप लोगों से तो मैं सख्ती से भी बनवा सकता हूँ कोई बात लेकिन मुफ्ती साहब के साथ मेरी वो बॉन्डिंग अभी नहीं है, इसलिए मैं कैसे हल करवाऊँ, ये बताएं। असल में चौधरी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का फजलो करम है कि हमने जो सबक पढ़ा हुआ है ना, वो आपने शेर सुना होगा ना कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिले जिसको सबक याद रहे। उसने सबक याद तो किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक याद किया हुआ है ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब हकीकत को अलहक को मुर्रुन ना, कि हकीकत जो होती है वो कड़वी होती है। अब हम हकीकत बयान करते हैं, अब हमारी ब्राड भी नहीं है कि हम खुलकर अपने अकायद और जो हकाइक है वो सामने रख दे, लेकिन फिर भी दबे दबे अल्फाज में वो जो बातें मैंने की चौधरी नसरुल्लाह साहब, आपकी अगर मैं इज्जत करूंगा इंसानियत के हवाले से तो वो ठीक है, लेकिन वो बातें जो मैंने बता दी वो हक है ना, वो उसूल दीन है, उसूल दीन पर ये कोई आपकी कंप्रोमाइज सोच नहीं। है। और ये सुने, बात खुद मुफ्ती आपके साहब, मिर्जा महमूद मुफ्ती साहब ने साहब भी सुने, लिखी है। मुफ्ती साहब सुने, जी जी, आपकी सोच है, इसको हक का नाम ना दें, ठीक है। सोच का मेरी तल्लुक बात अगर कैफियत से कंप्लीट होता हो है। जाए चौधरी साहब तो आप हाँ जी, तो इसको सोच का मैं नाम कह रहा ना हूँ दें, ना ये कि आपकी यही ओपिनियन है। सेम बात जो मैंने की ये आपके मिर्जा महमूद साहब ने भी की है कि ये वो दीन का हमारे मामला है, बुजुर्गों ने दीन जो के बात की मामले है, में जिस रंग में की जॉय है, साहब वो मुझे हमें भी ज्यादा मौका पता है दीजिएगा, आपसे। मुझे भी मौका दीजिएगा बराए मेहरबानी, क्योंकि इधर जरूर बात ब्रदर, हुई है। जरूर, क्यों नहीं। मेरा देखें, चलो। ये मुफ्ती साहब आए हुए हैं ना, इनसे मेरा प्यार भी बहुत ज्यादा पुराना प्यार है, वो 4 साल पुराना प्यार है। इन्होंने जब आप बात आके की है वो बड़ी गलत बात की थी। देखें, गलत बात की, बिल्कुल। अगर हम देखते हैं कुरान शरीफ को, दीन इस्लाम के शुआर को, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए अहले ईमान, अहले किताब में सबसे ज्यादा करीब तुम्हारे वो हैं जो खुद को नसारा कहते हैं, उनमें उलमा हैं, उनमें मशाइख हैं, और वो तकब्बुर नहीं किया करते। ख्रिस्ती साहब, पहली बात तो यह है कि ना हमारा और आपका कोई प्यार का रिश्ता है, न कोई दोस्ती और चलो। भाईचारे का रिश्ता है, तो आप ए, अपने प्यार प्यार है को इस प्यार तरह तुम्हारा। जाया ना करें। यार मुझे भी मौका दे। दूसरी यार बात ये प्यार कि मैं जहाँ इसको पर बोलता आपको ये हूँ, आयत तो ये प्यार मालूम है, इसलिए बोलता हूँ कि आप जब आके गलत बात करते हो तो मैं आपकी ठुकाई कर देता हूँ।
اس کو پیار بولتا ہوں میں. آپ میری ٹکائی چھوڑ دے, آپ جوزف کو تیار کریں میرے ساتھ مناظرے کے لیے. وہ اور میں میرا کام آپ کروں, لوگوں جا کو کے خود کر 3 لو. سال سے چیلنج ہے کہ بائبل خدا کا اور کلام جا نہیں کے ہے. خود کر لو, دیکھ لو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ہوسٹ بھائی, پھر میں کچھ بولا تو سب کو برا لگے گا. لو جی, اب میں نے کوئی غلط بات کی ہوسٹ صاحب؟ میں اگر یہی بیان الفاظ جو ہیں آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں بول دوں تو کیسا لگے گا, یہ بتائیں مجھے. ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تھینک یو, آئی لو یو برادر, آئی لو یو, آئی لو یو. اور دوسری بات خرستی, ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء پہ ایمان نہیں لے آتے. یہ دیکھ لیں, یہ خود کو مفتی کہنے والا بندہ اس طرح کی بات کر کے اشتعال دلاتا ہے. جو بات اس نے دیکھیں خرستی صاحب, کیا اس ٹاپک پر ہمارے مناظرے نہیں ہوئے؟ او یار جا کے اپنا کام کرو بھائی, نہ چھیڑو نہ اکساؤ. دوسری بات یہ کہ آپ کو تو قرآن کی وہ آیت معلوم ہے کہ اسلام کے زیادہ قریب یہ نصارہ ہے. آپ خود کو نصارہ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے ہیں, ہم ہیں. آپ نصرانی ہیں, ہم نصارہ ہیں. مطابق قرآن شریف نصارہ وہی ہے. آپ کو تو اللہ نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ٹھہرایا ہے. کیا بولا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو, جن کو آپ جیسس کہتے ہیں, ابن اللہ ٹھہرایا. بالکل کلام میں لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہے وہ مانتے ہیں ہم. ہاں, اور الہ ٹھہرایا. ہمارے پاس کلام مقدس میں عقیدے ہمارے لکھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, قرآن کی بات ہو رہی ہے بھی. تو بھائی قرآن میں ساری چیزیں ہم نہیں نہ مانتے ہیں. اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کو دین اسلام سے نکال کر آپ کو یہودی یا نصرانی نہ بنائے. یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ لو جی. ہاں لو جی, کیا لو جی نے اب حوالہ دیں ہماری طرف سے بنا رہے ہو باتیں. میری یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آپ خود کو عالم بولتے ہو, بتائیں یہ جو ابھی آپ نے الفاظ بولے سارے بھائی کسی نے ریکارڈنگ کی ہو, ہوسٹ بھائی سنبھال کے رکھیے گا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یار, لیکن یہ میں آپ دوبارہ کہہ دیتا ہوں, آپ مطالبہ سورہ آل عمران اس کی 55 نمبر آیت میں واشگاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے کفار پر قیامت تک برتری دے دی گئی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہاں تو ان کے ماننے والے مسلمان ہیں. ہمیں مسلمان کیوں ہیں؟ امتی کون ہے ان کے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواری جو تھے ماننے والے. بھائی مفتی صاحب آپ امتی ہو, ان کے ماننے والے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کے امتی جو ہیں ہمیں. ان کے عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو کیا کہتے تھے اس زمانے میں؟ عیسائی کہیں بھی نہیں. حواری. ہاں بالکل. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو ان پر ایمان لائے ان کو کیا کہا گیا؟ حواریون بولا گیا قرآن شریف میں. حواریون. تو یہی قرآن نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. بالکل مانتا ہوں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم کرسچن ہوئے, ہم خریستی ہوئے. او بھائی میں مانتا ہوں اس اصول کے تحت تو مسلمان ہیں ہی ہم. ہم آرتھوڈاکس ہوئے, اس اصول کے تحت مسلمان ہمیں. آپ تو اہل ایمان ہو, اور یہی ماننے والے آپ کو تو یا ایھا الذین آمنوا آپ کو تو بولا ہی گیا ہے بھائی. آپ کو مومنین بولا گیا, مسلمان آپ کو نہیں بولا گیا. مسلمان تو ہمیں, آپ زبردستی مسلمان بن رہے ہو. لے اب دیکھو یہ جھوٹے کیا مسلمین کس نے فرمایا؟ وَأَنَّ مسلمین ہمیں, آپ تو مومنین ہو, آپ تو مسلمان ہی نہیں ہو. آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں. اس اصول کے تحت ہمیں, آپ نہیں ہو. ہاں تو پھر مان لے کہ یسوع بھی مسلمان تھے. آپ مانے آپ مسلمان نہیں ہیں. یسوع مسلمان تھے؟ نہیں تھے. ہاں تو پھر آپ کیسے مسلمان ہوئے کہ یسوع تو مسلمان نہ ہو بقول آپ کو ان کے ماننے والے مسلمان ہو؟ آیت آپ نے دی ہے اس اصول کے تحت
اس قرآن شریف کی آیت کے مطابق ہم تو ٹھہرے مسلمان یسوع المسیح کے، لیکن اور یسوع آپ لوگ یسوع جو مسلمان ہے یا نہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومنین ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یسوع، آپ کہتے کہ یسوع مسلمان نہیں ہے، تو آپ کیسے نہیں ہے، مسلمان ہوئے ان کے ماننے والے؟ آپ نے جو آیت دی ہے میں تو اس آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو آیت انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، سارے انبیاء جو تھے وہ مسلمان تھے۔ مسلمان کدھر یحکم لکھا ہے؟ بہا اسلم مسلمان ہے۔ النبیون الذین اسلموا، بھئی عربی کا پریشر مجھ پہ نہیں ڈالیں، اسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے انبیاء سرنڈر مسلمان کرنے تھے، آپ والے، کہتے کہ آپ مسلمان تابع ہیں، فرمان، آج کے بعد تو خود کو فرما کرسچن نہیں برداری بولو گے کرنے نا؟ والے، اور عیسیٰ علیہ السلام خرستی کے صاحب حواریون نے آج کے جب بعد بولا خود ہے کو کرسچن تو نہیں بولو گے نا؟ انا مسلمون، ہم تابع داری کرنے والے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کا مطلب ہوا نا، اور تو مسلمان کا مطلب ہی تابع دار ہے نا۔ ہاں مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہی تابع دار ہے نا۔ ہاں تو یہی تو بات ہے۔ ہاں تو یہی آپ سے کہہ رہا، آج کے بعد خود کو کرسچن تو نہیں پکارو گے نا؟ نہیں کیوں، آپ نے، آپ کے کہنے پہ میں نے کرنا کچھ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کو قرآن نے اس مسلمان آیت فرمایا۔ کے مطابق جہاں پہ حواریون کا ابھی اس تذکرہ کے ہوا پہلے ہے، کہہ رہے تھے کہ آپ نصرانی ہیں۔ سن لیجئے، بات کرنے دیں، بیچ میں زیادہ نہیں اوور ٹاک نہیں کریں۔ اس آیت کے مطابق جو حواریون کا تذکرہ ہوا ہے، وَأَنَّا مُسْلِمُونَ، ان نے بولا کہ ہم سرنڈر کرنے والے ہیں، تابع فرمان ہیں ہم، کہ ہم تو ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ تو السلام مسلمان تو ہی کہتے ہیں نا تابع دار کو۔ اچھا آپ حواری ہیں، بائی آپ ڈیفینیشن حواری بات ہیں؟ ہو رہی ہے، اور ادھر حواریون کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم تیرے تابع دار ہیں، ہم تیری مدد کریں گے۔ میرے لگا دے، بالکل کوئی نہیں، کوئی نہیں، نون یہ صاحب مفتی مجھے صاحب جانتے جو ہیں ہے ان نا، کو۔ نون صاحب آپ حواری ہیں، آپ حواری ہیں؟ مفتی صاحب جو ہے نا، ان سے میرا پیار بھی ہے، یہ جب پٹڑی سے اترتے ہیں نون صاحب آپ حواری ہیں، آپ حواری ہیں، حواری ہیں آپ؟ یہ تو ان حواریون کی بات ہو رہی ہے جو ان کی حیات کے دوران تھے، ان کی بات ہو رہی ہے یہ۔ تو پھر آپ نے خود کو کیوں مسلمان کہا؟ بھائی وہ پیمانہ آپ نے استعمال جب کیا، میں نے اس پیمانے کے تحت بولا ہے۔ کون سا پیمانہ؟ جو آپ نے بولا ہے کہ جو ان کے جو حواری تھے، جب ان سے پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میری مدد، میری نصرت کون کرے گا، انہوں نے بولا کہ ہم تیرے تابع فرمان ہیں، ان کی بات کی تھی۔ اور آپ نے جب یہ بات دکھائی ہے تو میں نے بولا کہ مفتی صاحب اس اصول کے تحت جو یسوع المسیح کے پیروکار ہیں ان کو مسلمون بولا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر اسی کو پیمانہ بنایا جائے تو ہم بھی یسوع المسیح کے تابع فرمان ہیں، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ٹھہرے۔ آپ تو یا ایھا الذین آمنوا ہیں، آپ تو مومنین ہیں۔ اچھا تو مومن اور مسلمان میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مومن ہوتا ہے ایمان لے آنے والا، ہاں ہاں، اور مسلم ہے تابع داری کرنے والا۔ اچھا یہ تو ترجمے ہو گئے، یہ تو ترجمہ ہو کی گیا۔ بات ہے، اور کدھر سے آپ نے نکالنا ہے؟ ترجمہ ہی ہے۔ فرق بتائے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ مان میں لے کب آنے تک والا ایک ہے، حوالہ دوسرا نکالوں؟ سرے تسلیم خم کرنے والا ہے ایک۔ مفتی صاحب فرق بتائے، فرق، ترجمہ چھوڑے، مفتی صاحب فرق بتائے۔ آپ کسی اور سے بحث کریں، آپ میرے میں لائق آپ نہیں سے ہیں۔ پوچھ رہا ہوں فرق بتائے، آپ ترجمہ نہیں، فرق تھوڑا بتائے۔ مزید پڑھ لیں، آپ فاضل عالم ہو جائیں گے، پھر مجھ سے بات کیجئے گا، میرے ساتھ پورے نہیں آ سکتے ہیں آپ۔ اچھا میں بات نہیں یہ کرتا بتائے ہوں، مجھے، میں بات بالکل نہیں کرتا ہوں، لیکن جب میں کروں تو میں اچھا بڑا مجھے یہ خطرناک بتائے بچے خرستی مجھ سے۔ صاحب، نہیں، بچے مجھ سے۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، علمی آپ مجھے خطرے یہ کی بات بتائے، کر رہا ہوں، علمی طور پہ خطرناک، مجھے یہ بتائے کہ یہ جو جناب برنباس حواری اور جناب پولس صاحب، ان دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ یار مجھے نہیں پتا۔ ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھ لو۔ کیونکہ میں بلا وجہ آپ مجھ سے سوال ڈالیں گے، میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتا ہوں اس طرح سے۔
नहीं नहीं, जितनी बता छोटी भी बात देना। होती है मैं उस हद ये तक चौथी रह के बात है। करता हूँ। अल्लाह के बंदे, ये लड़ाई जो हुई थी, आपने रसूलों के अमाल पढ़े हैं, बुक ऑफ एक्ट्स? भाई आपकी लिमिट इधर खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, वो अगर आपने नहीं, पढ़ी नहीं, होगी तो आपको मालूम हो जाएगा आप ऐसा कि करें, बरनबास आप अगर हवारी आपको की आप और मुफ्ती जनाब साहब अगर पोलोस मैं की देखें, ये जमात लड़ाई क्यों हुई अहमदिया थी? के दोस्त बैठे हुए हैं, इनके सामने अगर आपको ज्यादा शौक है मेरे साथ मुनाजरा करने का, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कैमरा खोल के अपनी शक्ल दिखा के मेरे साथ करो चैलेंज, करो 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 चलो मैं सामने आ रहा हूँ, शक्ल दिखाओ, पहले आप भी खोलो, शाबाश। अपनी खोलो, शक्ल खोलो। दिखाओ, मनाजरा सेट करूंगा, जब मनाजरा होगा तो फिर मैं खोलूंगा। नहीं, खोलो। मैंने कैमरा ओपन कर शक्ल दिया है, दिखाओ। चलो शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल भी तो दिखाओ ना। शक्ल कैमरा दिखाओ। खोलो। देखिए जी, ये मुफ्ती अब्बासी नहीं, दोनों एक साहब एक दोनों- अपने आप दोनों- को मुफ्ती आलम बोलने वाले हैं, इनको मैंने चैलेंज दिया है, ये अपनी शक्ल दिखाएं, मैं इनसे मनाजरा करूंगा। खोलो जी, खोलो मैंने कैमरा। कैमरा ओपन कर दिया है, अपनी आप भी शक्ल एक कैमरा दिखाओ। ओपन करे, चले इसको बड़ा चैलेंज फोटो करें, यकीन दोस्त जाने। भाई, इसको बड़ा फोटो करें, आज मैं इसको गैरत दिलवाऊंगा। फोटो बड़ा कर दें इसका। चलें कर देते हैं, होस्ट कर दें जी इनका फोटो बड़ा। आओ जी मुफ्ती साहब, खोलो कैमरा। आज ये उम्मीद है मेरे दोस्त ये रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। चले कौन सा लब यरूशलेम के बारे में बता दे, कौन सा लब यरूशलेम जो हुई थी, और जो अंताकिया से जो वफद आया था जनाब बरनबास और पौलुस, उस वफद के दोनों उसके बड़े थे, वो अपने साथ जो जेंटाइल्स थे, वो जो नामस्तूनी थे, उनका एक वफद भी साथ लेकर आए थे। इसको चैलेंज और यरूशलेम में एक काउंसिल हुई थी जिसको काउंसिल ऑफ यरूशलेम कहते हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वापस जाकर जो हवारी बरनबास थे और जनाब पौलुस थे, उनमें लड़ाई हो गई। यीशु मसीह का शेर बैठा हुआ है, यीशु मसीह का शेर बैठा हुआ है, करे मुनाज़रा, ओपन चैलेंज बता भी देना। मुफ्ती साहब मेरे पास इतना इल्म होता मैंने कैमरा खोल सादा देना। बंदा कर रहा है, मैं देखता हूँ कितने पानी में है ये आज। मुफ्ती आ जाओ यार, तुम मर्द हो, तुम उससे क्या हो जाएगा? और पानी तो सामने है, ये देखो पानी तो सामने, आपको शोर आ रही है? भैया पानी उसको पिलाओ ना, सामने आओ। भाई जितने सामाईन हाजरीन मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बात याद रखिएगा कि अभी तक मैंने ना तो कुरान शरीफ पे, ना अहदीस पे, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पे कोई सवाल उठाया है, लेकिन ये बंदा मुसलसल मसीहत पे, बाइबल मुकद्दस जो कलाम हक है उस पे मुतवातर हमले कर रहा है। ये सब देख लें, इसको रिकॉर्डिंग को संभाल के रखिएगा। अच्छा, बाइबल भी कलाम है और यीशु भी कलाम है, तो दोनों कलाम है। बर्दाश्त दिखा रहे हैं। अब नहीं, कलाम बाइबल है या यीशु मैं है? करना चाहता हूँ ख्रिस्ती, अब आप चौधरी साहब एक सेकेंड, ख्रिस्ती साहब, कलाम बाइबल है या कलाम जो है वो यीशु है? अजीब बंदे, आप बाइबल को कलाम कह रहे हैं, हालांकि कलाम तो यीशु को कहा जाता है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आपने ये नहीं देखा है? आपने मुझे खामोश करवाया। नहीं मैं मुफ्ती साहब, बाइबल उनकी देखें, हमारी तो ईमान का हिस्सा है ना, आसमानी किताबों के ऊपर यकीन ला। नहीं, हमारा बाइबल पर ईमान नहीं है भाई। ना, बाइबल को किसने ईमान ज़बूर, इंजील, अगर इनके ऊपर तो रात ज़बूर की बात करे, बाइबल की बात ना करे ना।
क्यों ना करें भाई, कि वो भी वो हजरत ईसा सच्चे अल्लाह नबी के थे बंदे, बाइबल और चीज है, तौरात जबूर इंजील और सहाइफ और चीज है। अब देखिए यार हजरात एक मोहतरम, सवाल, अब ये कैसी देखें अजीब अपने बात कर ये दी है यार, उसूल अल्लाह के कैसा बंदे। है, ये अजीब बात करते हैं नसरुल्लाह भाई। मैं जवाबन कोई हमला नहीं मैं कर रहा नहीं हूँ, करता, मैं अजीब गवाह बात रहने वो का। कर रहे हैं मुफ्ती साहब हाँ, भाईजान, मैं तो यकीन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये गवाह रहिएगा कि मैं सिर्फ बर्दाश्त करता हूँ इस भाई को। ये और आपके खेल पुराने हो चुके हैं नून साहब। जब मेरी बर्दाश्त से काम ज्यादा बढ़ जाता है फिर मैं इनको सख्त बोल के रुखसत करता हूँ। अभी तो मुनाजरे का चैलेंज दिया मुझे लेकिन खुद। जो मैं दिया चैलेंज, खोलो कैमरा, क्योंकि तंग कर रहे हो। हाँ, तो फिर बर्दाश्त करें ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि मर्द बर्दाश्त के करो? बच्चे हो, मर्द के बच्चे हो तो खोला कैमरा, मैं मुनाजरा करूँ। नहीं, मैं तो औरत का बच्चा हूँ। बच्चे हो तो खोला कैमरा, आप मैं मर्द के मुनाजरा बच्चे करूँ। हैं। मैं तो औरत का बच्चा। फरिश्ती साहब आप मर्द के बच्चे हैं। बनियामीन भाई आ गए हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। फरिश्ती साहब मर्द का बच्चा है। मुफ्ती साहब खुश रहा करो। ओ अल्लाह के बंदे, हम सब औरतों के बच्चे हैं। मर्द का बच्चा नहीं होता, मुफ्ती बच्चा औरत साहब, का कोई होता हाल है। नहीं मुफ्ती तेरा मुफ्ती की हो साहब, गया मुफ्ती साहब, यार, ये मार रहे हो मुफ्ती साहब तुसी भी ना। मुफ्ती साहब आपको जाने बाइबल दिए। को गायब ही कर दिया आपने, मतलब अंजील को। अंजील को नहीं, बाइबल को। अच्छा, चलें जी, अंजील और जितने बाइबल में क्या दोस्तों ने फर्क है? ये मुफ्ती साहब की मुफ्ती साहब रिकॉर्डिंग चले हमारे रखी है। इलम के लिए एक सेकंड क्रिस्ती में सवाल पूछ, करो। अंजील और बाइबल में क्या फर्क है भाई? ये हमें बता दें, हमारे इलम में इजाफा हो जाए। माशाल्लाह, ये खरिश्ती साहब बता दें इनको दोनों में क्या फर्क है। नहीं, आप बताए ना। क्रिस्ती साहब ने तो अपने, क्योंकि क्रिश्चियन, उन्होंने अपनी फेवर में तो बात उनको करनी तो है। बोल देना आप कि बताएं। वो दोनों को एक समझते हैं या अलग अलग। अच्छा, आप दोनों को सेम मुफ्ती समझते साहब, हैं चौधरी साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे पता होता तो मैं पूछता। नहीं, बाइबल से ये बेंजामिन साहब आ गए, ये आपको बता देंगे माशाल्लाह। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुफ्ती हैं बनियामिन भाई, वो जो मुफ्ती और ये तो भी नहीं है ना? क्रिश्चियन है, ये असल चलें क्रिश्चियन है, ठीक है, असल सच्चा चलें ठीक क्रिश्चियन है, है, उनसे मैं सच्चा बाद में मुच्चा पूछ क्रिश्चियन। लूंगा। मैं पूछ लूंगा। अभी आपकी क्या राय है, मैं आपकी पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब। और बेंजामिन साहब मेहमान है, हम तो रोज जो है ना मिलते रहते हैं। नहीं बता नहीं, दूंगा आपको मैंने चौधरी आपसे साहब। पहली दफा सवाल करना है, सवाल करना है। ओ बेंजामिन साहब, अल्लाह के बंदे, ख्रिस्ती आपका क्रिश्चियन भाई है, वो भी क्रिश्चियन है, ये नून है। क्या सबूत है इनके पास ये मसीह है? लो जी, नून को क्रिश्चियन ही से नवा वाला कट्टा, रख दिया। आप खुद नवा क्रिश्चियन कट्टा है खुल गया जी। बेंजामिन साहब? आप खुद मसीही है? जी पक्का मसीह है। तो ये कि फिर किस तरह क्रिश्चियन नहीं है? अजीब लोग हैं आप, आपस में जो है ना उलझे हुए हैं। भाई बात ये है कि जो असल तालीम है ये वो तो मानते नहीं है। ये जो उनकी अपना की तालीम मानते हैं, यूनानी की तालीम मानते हैं। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। लो जी लो जी, ख्रिस्ती नवा साहब, कट्टा अब खुल गया। ख्रिस्ती की हकीकत मुफ्ती, खुलने लगी हजरत नून की। मुफ्ती ये तो लो नया जी। कट्टा नहीं खुल गया? क्यों मुफ्ती साहब, ये तो नया टॉपिक छिड़ गया है। ओ अनम्यूट करो ख्रिस्ती, ये क्या हो रहा है? जी हाँ, अब ये देखो, टॉपिक चेंज नहीं करो, उसका जवाब दो बिल्कुल जो किया है। बेंजामिन साहब ने आपसे पूछा है। लो जी, ख्रिस्ती कहता है बेंजामिन काफिर है जो कि क्रिश्चियन है, और बेंजामिन साहब कहता है कि नून काफिर उसने है नहीं कहा, और नून क्रिश्चियन है। उसने नहीं कहा, बेंजामिन ने ये बात नहीं की। ओ अल्लाह के बंदे, ख्रिस्ती साहब, वो बेंजामिन खुद कहता है कि वो असल क्रिश्चियन है, मसीही है, और आप जो है ना सच्चे मसीही नहीं हो। ये तो आपके घर का मामला है, मुझे क्यों बीच में लाते हो?
ओ बरेलवियों को, लो जी किधर गए बरेलवियों आ जाओ, ख्रिस्ती ने आप लोगों का नाम लिया, बरेलवियों आ जाओ। ख्रिस्ती भाई मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं आप, सही कह नस रहे हैं आप। गया ख्रिस्ती नस गया, नस नहीं सच्चा गया, मसीही छोड़ो। बेंजामिन साहब आया, जाली मौलवी मसीही साहब नस एक गया। बात सुने अपना मुफ्ती साहब, आपने कैमरा नहीं खोला, आपने कैमरा खोल के उनका वो चैलेंज कबूल नहीं किया, लिहाजा आपको ये प्रोएक्टिव किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं न्यूट्रल होकर चौधरी बात साहब, कर मेरा रहा इन हूँ। दोनों से क्या वास्ता? वो बेंजामिन साहब कहते हैं वो असल मसीही है, और ये ख्रिस्ती जो है ये उनके यहाँ सच्चा मसीह नहीं है। वो क्या काम करना है भाई, हमें क्यों मजदूरी पर लगाया है, बात करें और आगे। अल्लाह के बंदे, वो बेंजामिन साहब को बोलने दे, उनका भी हक है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ख्रिस्ती साहब अब नहीं, मैं नहीं आप तो लगाऊंगा। जा रहे हैं, मैदान छोड़ के जा रहे हैं, अब बेंजामिन साहब बोलेंगे तो उनको कोई खामोश नहीं करेगा। फिर ये नहीं कहना कि मेरे पीछे बात की, आप उनसे उनके मुंह पर बात करो। क्या चीज? ओ यार ये बातें छोड़ो ख्रिस्ती साहब। आपके बेंजामिन साहब आए हैं, आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं, अब वो बोलेगा, फिर ये न कहना कि मेरे पीछे बातें कर रहा था। उनको पूरा मौका, उनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा होस्ट साहब से कि उनको पूरा मौका दे बात करने का। जी बेंजामिन साहब बात करें आप। अफजाल वड़ाइच, क्या नाम है इनका? रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सैफी भाई अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत है?